Hi guys, so in this video I will be talking about Capgemini hiring 2026 full syllabus. So so this is the full process. So first of all, let's understand the full process. Then I will be breaking down the whole process. The first step is basic registration plus screening, which is shared by Capgemini team only. So Capgemini team shared this in the PPT. Then second round, which they are saying is English assessment. So English assessment is basically your SVAR test. Okay. After that, they are saying this there is a technical assessment. Then they are saying then there is coding assessment. Then there is cognitive assessment, and then there is technical interview. First of all, don't worry about this whole process. The whole process is very easy. Okay, don't worry much about it. It has so much rounds. Okay, and if you are on this channel, I will be making the videos for the preparation as well. So make sure to subscribe this channel so you will be getting the notification whenever the video is out for Capgemini preparation for 2026. I am thinking to provide the preparation for technical assessment and coding assessment because these two things are very important, and cognitive assessment. English test is basic elimination round, but English test you can practice it on your all. But however, I will be providing the video on the English assessment as well. Okay. Also, for the preparation, if you want to prepare for any company or Capgemini, I just want to talk about it. So this is the Capgemini basic hiring link on which you can register, but if your college is eligible, then only. Okay, so the basic thing is this is Arjun series mock test in which you can enroll. Okay, why it is important? Because in future also, if you will be getting any hiring opportunity, you can enroll in this, because you will be getting here quant aptitude test, total 14 set and 240 questions, then reasoning mock test, verbal mock test, reading paragraphs, gamified assessment, pseudo codes, DSA questions, CS fundamentals, SQL questions, OOPS questions, data interpretation, web development, communication assessment, coding questions, and essay writing. Each and everything you will be getting here only. So definitely it's a full mock test series in which you can enroll. You will be getting everything for each and every preparation. You can enroll. The link will be in the description. Now let's start with our process. So first of all, the rules. So the rules are based on the college. So suppose in your college, Capgemini will be only hiring for the A4 role. So the package will be around 4 LPA. If they are hiring in your college for A4 and A5 role, okay, then the package will be 4 LPA and 5.75 LPA. Suppose they are hiring for A4, A5, and A6, all three roles, then package will be 7.5 LPA. Now the basic difference is the designation and the rules. So basically, A4 is basic your analyst position, 5.75 is analyst prime, and 7.5 is senior analyst. But it completely depends upon in your college for which position the company is hiring. Suppose if they are hiring till 7.5 LP, you may be expecting the offer of 7.5. If they are only hiring for A4 role or 4 LPA, then you will be getting only the A4 package, that is 4 LPA. Okay, so it totally depends upon in your college for which position Capgemini is hiring. Okay, now talking about the next whole process. These are the rounds. We will be breaking down the round. The first round is English assessment. Talking about this is a kind of qualification round. That means only the qualification is required. It is not a hard elimination round in which many candidates will get eliminate. Okay, so hard elimination will be not there. Okay, so don't worry much about it. But the qualification is required. That means at least a decent score is required in this round. Okay, decent score is required. So definitely prepare well for it. It is English assessment and do good in this. Okay, then there is technical assessment. So for technical assessment, it is a hard elimination round. Okay, it's a hard elimination, and Capgemini actually eliminate many candidate in this round, which is technical assessment. Okay, so it would be a total MCQ assessment in which you can definitely face the elimination. Then coding assessment. So generally this assessment decides which role you will be getting previously, but now it is mandatory. Now it is mandatory. However, it is not so much elimination round. Okay, but even if your average performance will work in this. Okay, but don't forget this time this round is mandatory. Okay, and actually you need to appear for it. You need to score at least something good in this, otherwise you can be eliminated in this.
Okay, like a very good performance maybe is not required, but at least a decent performance is required in this one. Then cognitive assessment, again a decent performance is required. The most hard elimination round is basic your technical assessment. The whole score of technical assessment, how you are performing in technical assessment is very important. Make sure to perform good in technical assessment, because these rounds are also elimination rounds, but the more importance will be given here in the technical assessment. If you will look closely to the previous years as well, then technical assessment holds the most important criteria in the Capgemini process. Then there is interviews. Okay, so students who clear all the rounds will be invited for a technical interview for the Capgemini. Okay, so now let's break down the process. The first is English assessment for 30 minutes. Now this is a SVAR test. Okay, SVAR test. Let's talk about this. So there would be section like listen and repeat. So what is listen and repeat? Basically, you will be hearing the sentence. After hearing the sentence, actually you need to repeat the same sentence. Okay. Now what is the difficulty? You will be listening the sentence in different accents. So this is the main problem. Like you need to catch the different accents, and you need to repeat the exact thing which have been spoken in front of you. Then speak on topic. You can be getting some topic on the topic. Okay, on the topics actually you need to speak. Okay, so suppose there is some topic given, you need to think about it and you need to speak on it. Then conversation, you can be hearing some conversation, or you will be part of a conversation in which you will be giving the answers based on the conversation. Okay, so this kind of assessment would be there. And question and answer, so you will be getting some questions, you need to answer them. Generic question only which you can answer easily. Okay, so this kind of assessment could be there, which is your SVAR or English assessment test. Okay, then or you can say it is a communication test. Okay, so this kind of assessment would be there. Then essay writing. So essay writing will be there. Okay, I am 90% sure but not 100% sure, but in this round only essay writing should be there. Okay, last year not specifically mentioned for this year. So last year actually the whole process was little bit different. This year the process is a little bit different, but the rounds are almost same, but they have eliminated the behavior assessment this year, because actually each year they also take the behavior competency test, but this year the behavior test is not present here. But essay writing should be there. Okay, and essay writing, basically you will be given a topic, on a topic you need to write an essay. Okay, so this would be the main thing, in which the main actually it is AI detection test. So basically AI cannot detect your much feelings. Okay, or the context, but the main thing is what the AI detects is grammar. Okay, and sentence formulation, like how you are formulating the sentence, how you are using the active passive voice, is your sentence of mid length. Okay, and your grammar skills. Okay, so that's why essay writing mainly focuses on English grammar. Then there is technical assessment, 40 minutes, very important. Again, as I said, it's a hard elimination round. So basically, this scores matters a lot, and many candidates got eliminate from this round. It is very important. So the topics in which you will be getting the MCQ here is data structures and algorithms, which is DSA, and algorithms specifically, cloud fundamentals, database, and networking. Security also, some questions you may get. Now if you are wondering how can we practice that, already provided the mock test here. Okay, as I said, in mock test you will be getting everything. Okay, so we have provided some mock test here, you guys can see here. CS fundamentals DSA, if you guys can see here, for DSA MCQ we have provided total 10 mock tests. You will be getting total 200 MCQs on DSA only. Okay, and then CS fundamentals on OS, DBMS, testing, networking, security, and cloud, everything we have provided the mock test. So a lot of mock test you will be getting. Okay, which you can use for your preparation. So definitely you can enroll in the course. Each and every round, each and everything is present in the mock test, not only for Capgemini, for any company you can use these mock test. Okay, so basically 40 minutes, 40 questions, and the difficulty level is easy medium. Okay, now the basic part is the cutoff can be little bit high. So in these 40 questions, try to solve at least 30 to 32 plus. This could be your cutoff.
If you are scoring 30 plus questions, it is a good score. It also depends if they are taking this round virtual or not. If this round is virtual, then 35 plus score would be good. If this is a offline score, offline round, then 30 plus score would be good. It totally depends upon what is the mode of exam, because currently they have not decided what will be the mode of exam. In different colleges there is a different mode. So if you are if the exam is ongoing through offline mode for this one, then 30 plus score is good, and 35 plus score is good if it is a virtual exam. Okay. MCQ level will be easy to medium. You need to prepare good for this. If it is a offline, make sure to prepare each and every topic, at least the basics, because majorly they will be asking the fundamental questions in this. Okay. Then next is coding assessment for 45 minutes. So generally two coding questions you can expect. One will be easy, one will be medium. Not they will be asking the questions from in-depth data structures like trees or graph or DP. Okay, so this kind of questions they will be not asking. Majorly they will be asking the algorithm based questions, majorly on arrays, strings, okay, searching sorting, sorting, inbuilt data structures, and number system numbers. Okay, so basic algorithm based questions they will be asking, not from trees, graph, or DP. Okay, so this kind of questions you should prepare, and at least try to solve one question so that you can proceed with the next round. If you will not solve anything, there may be a possibility that you also can get eliminated in this round. Okay, so two medium coding questions will be there, one easy, one medium. Then there is cognitive game based round. It is again for 25 minutes to 30 minutes round. Okay, it's a game based aptitude. We have already provided many videos for this, but recently the grid challenge, motion challenge, digit and switch challenge. So this kind of games would be there. So this is a total game based aptitude. Okay, game based aptitude. There will be different games which you need to play, and as you are playing the games, you need to think logically. And also we have provided many videos regarding this which you can use for definitely for your preparation, and you can look for it. Okay, so this is basically your aptitude plus a logical kind of questions which will be game based aptitude. Okay, and it has different levels. Whenever you will be solving the question, the level can be increased. After increasing the level, the it depends like till which level you are getting close. Okay, so it is a basic decent round, and a decent score would be fine for this one. Okay, so this will be your whole process, and after clearing this, definitely you will be getting your interviews. I hope you like the whole process. Also the link for the assessment preparation would be there in the description, which you can use for your preparation. Thank you so much for watching this video. Purchase it link will be in the description. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ट्री ट्रेवर्सल ऑर्डर का, एंड इसी प्रकार का सिमिलर क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट ईयर हमें देखने को मिला था, हो सकता है इस साल भी देखने को मिले, बिकॉज जनरली हर साल कैप जेमिनी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछती है। और इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना। अब बाइनरी ट्री हैज नोड्स विजिटेड इन द ऑर्डर, तो इसमें ऑर्डर बताया गया है कि सबसे पहले ये हमारा ट्री है, इसका 10 ये वाला नोड जो है वो ऑर्डर विजिट हुआ, फिर 20 विजिट हुआ, मतलब सबसे पहले ये प्रिंट हुआ फर्स्ट, फिर सेकंड ये प्रिंट हुआ, थर्ड पे 40 प्रिंट हुआ, फोर्थ पे 50 प्रिंट हुआ, देन फिफ्थ पे 30 प्रिंट हुआ, राइट, फिफ्थ पे, देन 60 प्रिंट हुआ, देन 70 प्रिंट हुआ। तो ये प्री ऑर्डर होगा, इन ऑर्डर होगा, पोस्ट ऑर्डर होगा या लेवल ऑर्डर होगा। अब हो सकता है कि इसमें तो चलो ट्री दिया है, बट हो सकता है कि ये ऑर्डर ट्रेवर्सर आपको ना दिया जाए और आपसे बोला जाए कि भैया इस प्रकार का कोई ट्री बना हुआ है और आप हमें ट्रेवर्सल बता दो कि इसका जो ट्रेवर्सल है वो क्या होगा। तो मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूँ क्या होता है। तो जैसे सबसे पहले प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल है, ये कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। जो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है वो होता क्या है, वो होता है रूट लेफ्ट राइट। मतलब सबसे पहले आप जिस भी जगह पे खड़े हो उसको पहले प्रिंट करोगे, फिर लेफ्ट में जाओगे और फिर प्रिंट करोगे, फिर लेफ्ट में जाओगे। मतलब आपका ये सीक्वेंस चलता ही रहता है। अगर आपको सिंपल भाषा में समझाऊं कि अगर आपको किसी भी प्रकार का अगर ट्रेवर्सल है वो पता है किस प्रकार का दिख रहा है, जैसे अगर आप इसको नोटिस करोगे किस प्रकार का ट्रेवल है, मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से लाइन को देखना, इस प्रकार का देखना। सबसे पहले लाइन जो है हमारी इस पॉइंट से चलना स्टार्ट होगी, देखो ध्यान से, ये वाला पॉइंट, ठीक है।
ध्यान से दिख रहा है आपको, ये वाले पॉइंट से लाइन चलना चालू होगी और वो ऐसे नीचे की तरफ जाएगी, और जहां जहां ये लाइन जाएगी वहां वहां एलिमेंट प्रिंट होंगे। तो अगर आप देखो सबसे पहले 10 प्रिंट हो गया, फिर 20 प्रिंट हो गया, फिर अगर आप नीचे ऐसे जाओगे तो क्या प्रिंट हो गया, 40। फिर आपकी लाइन ऐसे जाएगी यूं इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ का पूरा हो गया, फिर ऐसे जाएगी। तो अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ पे क्या था, 50 था, 50 था तो ये 50 प्रिंट हो गया। फिर 50 प्रिंट होने के बाद ये लाइन ऐसे यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी यूं 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 यूं, और ये चेक करेगी अगर कोई एलिमेंट रह तो नहीं गया, तो कोई एलिमेंट नहीं रह गया, और ऐसे ऐसे आपकी ये लाइन ऐसे जाएगी। फिर उसके बाद ये लाइन सबसे ऊपर पहुंच गई, फिर ये ऐसे मुड़ेगी, फिर ऐसे मुड़ेगी, तो यहाँ पर क्या आया, 30 आया, तो 30 प्रिंट हो जाएगा, 30 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद ये दोबारा से फिर ऐसे नीचे जाएगी, तो फिर अगर आप देख रहे हो तो फिर यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया, 60, और फिर ये दोबारा से ऐसे साइड में जाएगी, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया, 70, और फिर ये ऐसे ऊपर जाएगी। तो इसको मैं बोलता हूं पेंट शेप ट्रेवर्सल। ठीक है, पेंट शेप क्यों बोल रहा हूं पेंट शेप, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो एक पेंट टाइप का बन गया है। यहां से आपका ट्रेवर्सल चालू होगा, यूं नीचे जाएगा, फिर यूं साइड में जाएगा, फिर यूं ऊपर जाएगा, फिर यूं साइड में जाएगा, और फिर यूं नीचे जाएगा, और फिर यूं ऊपर जाएगा। तो ऐसे आपको प्रिंट करना है, ऐसे ऊपर से लेके नीचे प्रिंट होगा, फिर साइड में जाएगा, फिर यूं ऊपर की तरफ जाएगा, फिर नीचे यूं प्रिंट होगा, फिर यूं होगा। तो अगर आप देखोगे तो 10 प्रिंट हुआ, फिर 20, फिर 40, फिर 50, फिर ये ऐसे ऊपर की तरफ गया, कोई एलिमेंट बचा ही नहीं था। फिर उसके बाद यहाँ पर 30 प्रिंट हुआ, 60, फिर 70। तो इस प्रकार से ये जो ट्रेवर्सल चलता है इसको हम बोलते हैं प्री ऑर्डर। तो ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है कि क्या रूट है, क्या लेफ्ट है, क्या राइट है। बस ये जो पैटर्न मैंने आपको बता दिया, ये आपको ध्यान रखना है। अगर कहीं भी प्री ऑर्डर का क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार के पैटर्न को आपको यहाँ पर फॉलो कर लेना है, और आपका इजीली क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर आ जाएगा। अगर आप इस फॉर्मूले से जाओगे रूट लेफ्ट राइट, तो इससे भी आप जा सकते हो, बट ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। क्यों, सबसे पहले रूट को प्रिंट करो तो क्या हो जाएगा, प्रिंट 10 हो गया। ठीक है, अब हमें जाना है लेफ्ट। लेफ्ट में गए तो लेफ्ट के बाद अब लेफ्ट में चले गए, फिर दोबारा से हमारी लेफ्ट की कॉल लगेगी। क्या कॉल लगेगी, यही वाली, क्योंकि रिकर्जन चल रहा है। सो फिर से दोबारा रूट प्रिंट होगा, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 20। फिर 20 पर जाके फिर से नया नेक्स्ट कॉल क्या लगेगा, लेफ्ट। तो लेफ्ट पे हम फिर आ गए 40। फिर 40 से दोबारा से हमारा कॉल लगा रिकर्जन का, तो फिर से रूट प्रिंट होगा विच इज 40। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि यहां तो नीचे कोई ट्री ही नहीं है, तो यहां से ये बैक ट्रैकिंग होगी। अब जब बैक ट्रैकिंग होगी तो फिर ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर ये राइट को प्रिंट करेगा विच इज 50। तो इस प्रकार से अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा सॉल्व, बट टाइम ज्यादा लगता है। ये जो मेरा पेंट शेप वाला फॉर्मूला है ये याद रखना, इजीली आप कर पाओगे। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का आपका आंसर अगर कहीं भी प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल पूछा जाता है या इस प्रकार का ट्रेवर्सल आपको दिखाया जाता है, ये पेंट शेप में होता है, ऐसे ऊपर से नीचे, फिर साइड, फिर ऊपर, फिर ऐसे करके, तो ये प्री ऑर्डर। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विच इज इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो ये बोल रहा है कि अगर इस ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है तो हम कैसे करेंगे। तो देखो जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है, अभी आपको ये जो प्री ऑर्डर रिवर्सल का था वो मैंने आपको अभी इजीली समझाया है, करेक्ट। तो अब जब मैंने आपको उसका भी समझाया है तो इसको भी जरा अच्छे से उसी फॉर्मूले से हम लोग समझते हैं कि बेसिकली ये जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है ये कैसे चलता है। तो देखो आपका जो ट्री है वो कुछ इस प्रकार से है, करेक्ट। 1 2 3 4 5 और इधर है 6। जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है वो लास्ट से चालू होता है, प्री ऑर्डर यहां से चालू होता है और इन ऑर्डर इस जगह से चालू होता है, लास्ट से। जो आपकी सबसे लास्ट की लेफ्ट वाला, जो सबसे लेफ्ट का नोड है ना, उससे आप स्टार्ट करना। और पता है किस शेप में जाओगे, इस प्रकार से, यूं, फिर यूं, ऐसे इस वाले शेप में जाओगे, फिर ऊपर जाओगे, फिर अगर ऐसा कुछ है तो यूं, अगर नहीं है फिर ऊपर जाके फिर यूं। तो इस प्रकार से चलता है ये, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये जो है वो ही चलता है। जैसे अगर आप 4 से स्टार्ट करोगे तो आपकी इसकी जो लाइन जाएगी वो पता है कैसी जाएगी, मैं आपको दिखाता हूं एक बार। इसकी लाइन जाएगी इस प्रकार से, ये 4 से स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले यूं 4, फिर ऐसे ऊपर 2, फिर उसके बाद ऐसे नीचे यूं। तो ये इस प्रकार से चलता है यूं, ठीक है। फिर उसके बाद ये फिर ऐसे ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे ऊपर, फिर उसके बाद ये ऊपर पहुंच गया। अपन ऐसे चल रहे हैं ना यूं करके, फिर ऊपर ऊपर चेक किया इसने। फिर उसके बाद एकदम से ये कैसे जाएगा, ये ऊपर अपन पहुंच गए, फिर से सबसे नीचे जाएगा, और फिर सबसे नीचे जाके देखो आप जिस भी नोड पे हो ना, उस नोड के अपन को सबसे नीचे साइड जाना होता है, लेफ्ट साइड वाले में, जो भी आपका इन ऑर्डर होता है, राइट। फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो अगर आप देखोगे इसका पैटर्न कुछ इस प्रकार से रहता है कि आप सबसे लेफ्ट वाले से स्टार्ट करते हो, फिर आप उससे ऊपर जाओगे, फिर आप नीचे जाओगे, और फिर अगर उसके कुछ भी लेफ्ट में है तो आप फिर एक्सट्रीम लेफ्ट में जाओगे। मतलब आपको सबसे पहले लेफ्ट साइड वाला जो भी चीज है वो खत्म करनी है, और जैसे ही आपकी लेफ्ट वाली चीज खत्म हो जाएगी फिर आप उससे ऊपर बढ़ोगे और फिर राइट में जाओगे, फिर आप ऊपर बढ़ोगे, फिर बिल्कुल लेफ्ट वाली चीज चेक करोगे। जैसे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इसमें क्या प्रिंट हुआ, 4।
फिर उसके बाद हमने चेक किया क्या इसके लेफ्ट में कुछ भी है, तो लेफ्ट में तो कुछ भी नहीं है। फिर हम ऊपर गए क्योंकि लेफ्ट में कुछ भी नहीं है। अगर लेफ्ट में कुछ भी नहीं होता ना, फिर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। नहीं मतलब राइट भी चेक करते हैं। देखो सबसे पहले लेफ्ट चेक करते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि क्या लेफ्ट में कुछ भी है। अगर नहीं है फिर राइट चेक करते हैं, और नहीं है तो ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 4 प्रिंट हुआ, फिर हमने चेक किया क्या लेफ्ट में कुछ है, नहीं है। फिर हमने चेक किया क्या राइट में कुछ है, तो नहीं है, तो ये भी नहीं है। सबसे पहले आपको एक्सट्रीम लेफ्ट चेक करना है, ठीक है। तो 4 आपका यहाँ पर प्रिंट हो गया, फिर हम ऊपर की तरफ गए तो 2 प्रिंट हो गया, तो इसका भी डिजाइन जरा याद कर लेना। फिर 2 के बाद हमने चेक किया कि क्या हमारा लेफ्ट का सब कुछ है, सब कुछ डन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम राइट में जाएंगे, तो 4 2 फिर क्या प्रिंट हो जाएगा, 5 हो जाएगा प्रिंट, ठीक है। अब हमने चेक किया कि क्या इसके लेफ्ट में या राइट में कुछ भी है, कुछ भी नहीं है, तो ऊपर चलो। ऊपर गए, फिर चेक किया 2, तो भैया हम कहेंगे 2 तो प्रिंट हो चुका है, तो अब दोबारा से 2 नहीं प्रिंट होगा। फिर हम इसके ऊपर गए, तो फिर इसके ऊपर जब पहुंचे तो हमने बोला अब इसको प्रिंट कर दो, बिकॉज इसका जो लेफ्ट वाला साइड है वो पूरा प्रिंट हो चुका है, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर हम कहे कि चलो ठीक है, इसका लेफ्ट वाला पूरा प्रिंट हो गया, अब इसके राइट में चलो। अब राइट में पहुंचे, अब राइट में जाके भी हम सबसे एक्सट्रीम पहले लेफ्ट वाली चीजें चेक करेंगे। तो लेफ्ट में क्या था, 6, तो सबसे पहले हमने कहा 6 प्रिंट कर दिया। अब हमने चेक किया क्या 6 के लेफ्ट में कुछ है, कुछ भी नहीं है। क्या 6 के राइट में कुछ है, कुछ भी नहीं है। तो अब ऊपर चलो, बिकॉज कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं होता तो हम ऊपर चलते, तो फिर लास्ट में क्या प्रिंट हो जाएगा, 3। तो इसका डिजाइन आपको समझ में आ गया। ऐसा चलता है इसका कुछ डिजाइन, जो मैंने यहाँ पर बनाया है ना ये व्हाइट वाले से, ऐसा प्रकार का कुछ डिजाइन चलता है जो एक्सट्रीम लेफ्ट से चालू होता है। अगर लेफ्ट पूरा कंप्लीट है फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाता है, और इस प्रकार से इसका जो डिजाइन है वो बनता है। प्री ऑर्डर का क्लियर है, इसका भी आई थिंक क्लियर होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 425163, ये इसका आंसर होने वाला है इन ऑर्डर रिवर्सल का। और अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रही है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं मैं सिंपल वेज में आपको सारी चीजें पढ़ाऊं, बिकॉज मेरे को 6 इयर्स का एक्सपीरियंस अब हो चुका है टीचिंग लाइन में। तो अपना एक्सपीरियंस यूज करके मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को इजी से इजी पढ़ाऊं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। एंड अगर आप इसी प्रकार से प्रिपरेशन करना चाहते हो मॉक टेस्ट के थ्रू, ऐसे ही क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हो टाइमर के साथ, तो मॉक टेस्ट आप परचेज कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। काफी मेहनत से हमने 6 महीने लगाकर उसमें क्वेश्चंस डाले, 1500 क्वेश्चंस डालना आप खुद सोचो छोटी मोटी बात नहीं है। तो आप परचेज कर सकते हो, मात्र 250 रुपए में आप हमारी मेहनत को खरीद सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है वो है आफ्टर 1 पास ऑफ बबल सॉर्ट हमें इसका आंसर क्या मिलेगा। ये लिखा है आफ्टर 1 पास ऑफ बबल सॉर्ट ऑन 5384 व्हाट विल बी द एरे लुक लाइक। ये कह रहा है भैया 5 3 8 4 ये हमारा एरे है, और अगर हम एक पास यहां पर परफॉर्म करते हैं बबल सॉर्ट का, तो हमारा एरे कैसे दिखेगा। तो देखो बबल सॉर्ट क्या होता है, बेसिकली कंपैरिजन हम करते हैं बबल सॉर्ट में, राइट, एंड स्वैपिंग करते हैं कंपेयर करके। तो सबसे पहले क्या कंपेयर होगा, 5 और 3 कंपेयर होगा। अब चूंकि 5 3 से बड़ा है इसलिए यहां पर ये रिप्लेस कर देगा, तो 3 यहां पर आ जाएगा और 5 इस जगह पे आ जाएगा। फिर अपन के पास आ गया 8 और फिर आ गया 4। तो अपन का एक पोजीशन का जो कंपैरिजन है वो हो चुका है। फिर ये कंपेयर किसको करेगा, 5 और 8 को। अब चूंकि 5 8 से छोटा है इसलिए ये इसको स्वैप नहीं करेगा, और यहां पर 5 यहीं रहेगा, 8 यहीं रहेगा। फिर आया 8 और 4। अब ये चेक करेगा 8 और 4 में स्वैपिंग होगी। अब 8 और 4 में अगर आप देखोगे तो 4 छोटा है 8 बड़ा है, तो फिर से स्वैपिंग होगी। तो ये हो जाएगा 3 5 4 एंड 8, ठीक है। और बबल सॉर्ट से ये एक पास है, और यही पूछा है कि एक पास के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा। तो 3548, 3548 कहां पे है ये, 3548 कहाँ है, ये सी। तो सी हमारा आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। और बबल सॉर्ट में आपको एक चीज पता होना चाहिए, बबल सॉर्ट परफॉर्म करने के बाद, ठीक है, जैसे ही आप बबल सॉर्ट परफॉर्म करते हो तो पासेस होते हैं इसके अलग अलग, है ना। पासेस के बाद जो हमारे होती है जो एलिमेंट्स की पोजीशन है वो यहाँ पर फिक्स हो जाती है, जैसे जैसे आप पासेस को परफॉर्म करोगे। और बबल सॉर्ट में जैसे आप जैसे आप ये मान के चलो कि अगर आप बबल सॉर्ट के एंड में मतलब जैसे आप किसी भी पास को कंप्लीट करते हो, ठीक है। सपोज आपने बबल सॉर्ट का कोई भी आपने कोई पास है वो आपने कंप्लीट किया, तो आप ये मान के चलो कि जो लास्ट पोजीशन है वो फिक्स हो जाती है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो जो 8 है वो सबसे बड़ा है इस एरे में, तो जो भी लास्ट पोजीशन पे सबसे बड़ा एलिमेंट आ रहा है वही इसका आंसर होगा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। बिकॉज अगर अपन एक फेस की बात कर रहे हैं तो एक पास में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो सबसे लास्ट में हमें देखने को मिलता है। अगर आप चाहो तो इस प्रकार से भी कर सकते हो जैसे मैंने सॉल्व किया है, बट ये भी आप सोच सकते हो जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो आपको एक पास के बाद बबल सॉर्ट में लास्ट में मिलेगा। अगर आप देखोगे तो इस एरे में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो 8 है, और अगर इन चारों ऑप्शंस को देखोगे तो 8 आपको मात्र सी ऑप्शन में सबसे लास्ट में दिख रहा है, तो ये आपका आंसर हो सकता है। ये मैं आपको जस्ट थोड़ी बहुत ट्रिक्स बता रहा हूं, अगर आप चाहो तो पूरे से यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विच सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैज ओ एन लॉग एन वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। तो डेफिनेटली मर्ज सॉर्ट, ये तो थ्योरी क्वेश्चन है। मर्ज सॉर्ट होगा एन लॉग एन की, इसकी अपन की वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है। बिकॉज अगर आप देखोगे तो मर्ज सॉर्ट कैसे चलती है, अपन एरे को
दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, करेक्ट, फिर ऐसे जाता है एरे, फिर उसके नीचे फिर से जाता है, ऐसे इस प्रकार से जाता है, फिर अपन लास्ट में सॉर्टिंग करके ऐसे ऊपर ऊपर ट्रांसफर करते हैं, करेक्ट। तो एन लॉग एन होती है इसकी, बिकॉज अपन एन स्टेप्स में जा रहे हैं और लॉग एन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो एन लॉग एन इसकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। if you insert values into map like this, what will be map dot get one result? Okay, ये कह रहा सबसे पहले हमने मैप में वन ए पुट किया, तो अगर आप वन ए पुट करोगे तो वन के सामने क्या स्टोर हो जाएगा, ए, ठीक है। फिर कह रहा है टू बी पुट किया तो टू बी ऐसे हो जाएगा। फिर किया सी वन सी, तो अब कई बच्चे क्या करते हैं वन सी ऐसे कर देते हैं, ऐसे नहीं होगा। मैप में जो की है वो हमेशा यूनिक रहती है और इसको इस प्रकार से आप नहीं स्टोर कर सकते। अब चूंकि इसको यहाँ पर वन सी किया गया है तो वन का ये ए रिप्लेस हो जाएगा और वन के सामने सी आ जाएगा, तो ऐसा कुछ हमारा मैप देखेगा जिसमें वन के सामने सी है और टू के सामने बी है। अब ये कह रहा है व्हाट विल मैप डॉट गेट वन रिटर्न, तो ये क्या रिटर्न करेगा, सी रिटर्न करेगा, क्योंकि वन के सामने सी है तो इसका आंसर क्या होगा, सी। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ एक्स फोर इन दिस सूडो कोड, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू क्या है 4 और फंक्शन में पास कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि एक्स में 4 हमने पास कर दिया, ठीक है। इफ एन इक्वल्स टू 0 देन रिटर्न 1, ठीक है, इसको अभी छोड़ देते हैं। एन मल्टीप्लाई बाय एक्स एन माइनस वन, ठीक है। तो एन मल्टीप्लाई बाय मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑफ मतलब जो भी हमारा फंक्शन है 3, ठीक है। अब फंक्शन चूंकि हमने 3 से कॉल दिया है तो ये यहां पर फिर से इसमें नीचे के स्टेप में जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा n की वैल्यू हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय फंक्शन ऑफ, दोबारा से आ जाएगा n माइनस वन, बिकॉज ये रिकर्जन कॉलिंग है तो रिकर्जन को कॉल करेगा फंक्शन ऑफ 2, एंड फिर जो फंक्शन ऑफ 2 है ये कैसे कॉल करेगा हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय फंक्शन ऑफ 1, और फंक्शन ऑफ 1 कैसे कॉल करेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय फंक्शन ऑफ 0। एंड अब ये लोग बोल रहे हैं अगर n इक्वल्स टू 0 है तो रिटर्न 1 करना है, तो यहां पर रिटर्न क्या हो जाएगा 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 का आंसर क्या हो जाएगा 1। अब ये चूंकि 1 है, ये रिकर्जन से गया था तो इसका आंसर ऊपर पास होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय इसमें ये वाली चीज पास हो जाएगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 से क्या पास हो जाएगा 2, 2 ऊपर पास होगा। अब 2 अगर इसमें पास होगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय फंक्शन 2 का आंसर क्या आ गया 2, तो 2 इसमें आ गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6, ये ऊपर पास होगा, तो 6 जब ऊपर पास हो गया तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज 24, इसका आंसर होगा 24। ये किसका कोड है अपन का, फैक्टोरियल का कोड है। एंड अगर आपको नहीं समझ में आता ये फैक्टोरियल का कोड है तो मैं आपको सॉल्व करने की ट्रिक समझा दी है कि रिकर्जन कैसे वर्क करता है। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स में अच्छी नॉलेज है तो ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा, अदरवाइज आपको रिकर्जन सीखना पड़ेगा जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये हमने सॉल्व करे हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में आए थे मीडियम डिफिकल्टी के, एंड जितना टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूंगा इस प्रकार की और वीडियोस डाल पाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Now the question is predict the output of the following pseudocode for n equals to 5 and m equals to 6। ये लोग बोल रहे हैं कि n की वैल्यू क्या है 5 है और m की वैल्यू है 6, ठीक है। अभी कह रहे हैं हमें इसका आउटपुट बताना है, इंटीजर सॉल्व इंटीजर n कॉमा इंटीजर m, ठीक है। तो सॉल्व हमारा फंक्शन है जिसके अंदर हमने n कॉमा m पास किया है, मतलब 5 कॉमा 6 हमने पास किया है, ठीक है। इफ n इज ग्रेटर देन 4 एंड m इज लेस देन 7, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रही है। तो हमें रिटर्न करना है सॉल्व n प्लस वन एंड m प्लस वन। तो सॉल्व में क्या पास हो जाएगा n प्लस वन विच इज 6 एंड m प्लस वन, तो m प्लस वन क्या है 7, सो 6,7 यहाँ पर कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारा ये वाला चीज जो है वो कॉल होगा दोबारा से इस फंक्शन में। अब जब 6,7 कॉल हुआ तो दोबारा से ये कंडीशन चेक होगी, इफ n इज ग्रेटर देन 4, यस n इज ग्रेटर देन 4, if m is less than 7, no this is not true because m is not less than 7, m is 7, तो ये जो कंडीशन है ये यहां पर फेल हो जाएगी दोबारा कॉलिंग में, तो हम जाएंगे else में। तो else में मेंशन है रिटर्न n प्लस m, तो n की वैल्यू क्या है 6 एंड m की वैल्यू है 7, सो n प्लस m क्या हो जाएगा 6 प्लस 7 विच इज 13, तो 13 यहां से रिटर्न होगा ऊपर की तरफ। तो सॉल्व 5,6 में यहां पर इस जगह पे क्या वैल्यू रिटर्न हो जाएगी 13, तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो यहां पर क्या निकल के आने वाला है 13। ओके, सो जो हमारा फाइनल यहां पर आंसर होगा वो यहां पर हमें निकल के मिलने वाला है 13, एंड यही हमारा फाइनल आंसर होगा। सो इस प्रकार के जो छोटे छोटे रिकर्जन के सूडो कोड्स हैं आपसे पूछे जाते हैं, इसीलिए हम इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक और सूडो कोड की तरफ आते हैं, डिक्लेयर एन एरे वर्ड ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप। एक एरे हमें डिक्लेयर करना है वर्ड, और ये किसका है स्ट्रिंग डेटा टाइप का है, ठीक है। डिक्लेयर अ वेरिएबल एल, take a string as input in the word for l0 to the length of word, मतलब l का लूप चल रहा है 0 से लेके जो भी स्ट्रिंग की लेंथ है वहां तक, तो n-1 आप बोल सकते हो, मतलब लास्ट तक जा रहे हैं, ठीक है। प्रिंट वर्ड l,
सो वर्ड ऑफ एल को हमें प्रिंट करना है जो 0 से स्टार्ट हो रहा है n-1 तक, तो जो पूरी ओरिजिनल स्ट्रिंग है वही प्रिंट होगी, करेक्ट। तो जो पूरी स्ट्रिंग है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर एक चीज क्या थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, वो मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा, ध्यान से समझना। सपोज एक स्ट्रिंग है हमारी एंड वर्ड में हमारी स्ट्रिंग यहाँ पर स्टोर्ड है, एंड सपोज स्ट्रिंग की वैल्यू है एप्पल, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहां पर अगर आप देखोगे तो इसकी लेंथ क्या होगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहां पर हम कर रहे हैं लेंथ ऑफ वर्ड -1, मतलब 5 - 1, तो कहां तक जाएंगे हम, 4 तक। तो काफी बच्चे क्या समझते हैं, अगर हम 4 तक जा रहे हैं तो ये जो लास्ट वाला है ना ये एक्सक्लूड हो जाएगा, जबकि सूडो कोड में आप एक चीज देखना, जहां तक 2 लिखा है वो हमें इंक्लूड करना पड़ता है। तो इसमें लिखा है 2 लेंथ ऑफ वर्ड -1 मतलब 4, तो 4 यहां पर इंक्लूड होगा। सो 0 1 2 3 4 मतलब जो लास्ट वाला कैरेक्टर है वो भी यहां पर इंक्लूड होने वाला है। काफी बच्चे जैसे ये कंफ्यूज करने के लिए यहां पर पता है क्या लिख देंगे ऑप्शन में, इट रिमूव्स लास्ट लेटर ऑफ द स्ट्रिंग, तो काफी बच्चे उसको चूज करके आएंगे। जबकि अगर 2 लगा होता है ना, तो 2 का मतलब क्या है कि जो भी यहां पर दिया हुआ है वहां तक आपको लेकर जाना है। सो लेंथ ऑफ वर्ड -1 लिखा है मतलब आप उस पोजीशन तक जाओगे, इसलिए इसका जो आंसर है वो प्रिंट होके यहां पर क्या आने वाला है, इट प्रिंट्स द ओरिजिनल स्ट्रिंग्स। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, 8th क्वेश्चन है जिसमें दिया है इंटीजर x, y, z, सेट x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 16 एंड z इक्वल्स टू 3। देखो इस क्वेश्चन को हम हवा में करने की कोशिश करते हैं, हवा में। अब हवा में करने की मैं क्यों कह रहा हूं, मतलब बिना पेन का यूज किए मैं समझा रहा हूं कैसे करते हैं सॉल्व, बिकॉज जब इन्फोसिस का एग्जाम होगा तो आपको तो लिखने का कुछ होगा नहीं ना सिस्टम, आपको हवा में क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो एक बार हवा में सॉल्व करते हैं। सो ध्यान से समझना, मैं पेन का यूज नहीं करूंगा कुछ भी समझाने के लिए, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। सेट x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 16 एंड z इक्वल टू 3, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पर कंडीशन दी है x इज ग्रेटर देन y, तो लेट्स चेक हियर इफ x इज ग्रेटर देन y, नो, क्योंकि x की वैल्यू 10 है, y की 16 है, तो हम जाएंगे एल्स में। अब एल्स में लिखा है y इक्वल्स टू x डिवाइड बाय 2, सो y की वैल्यू यहां पर क्या है, 16, ठीक है। और यहां लिखा है y इक्वल्स टू x डिवाइड बाय 2, x की वैल्यू क्या है 10, तो y की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 5। याद रखना y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूं, तो इन्फोसिस के एग्जाम में भी आपको ऐसे दिमाग में चीजें रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी हो गई यहां पर 5, ठीक है। अब इसमें लिखा है एंड इफ, ठीक है, तो यहां पर ये वाला जो इफ है स्टेटमेंट ये क्लोज हो जाएगा, ये वाला। इफ z इज ग्रेटर देन y, तो z की वैल्यू है 3 एंड y की वैल्यू अपडेट होकर क्या हो चुकी है 5, क्या z y से ग्रेटर देन है, नहीं है। एल्स y इक्वल्स टू z डिवाइड बाय 2, तो z की वैल्यू क्या है 3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो y की वैल्यू अपडेट होकर 5 हुई थी और अब हो जाएगी 1। और लास्ट में लिखा है प्रिंट x प्लस वाई प्लस जेड, तो x की वैल्यू क्या है 10, y की वैल्यू अपडेट होकर क्या हो गई 1 और z की वैल्यू क्या है 3, सो 10 प्लस 1 प्लस 3 विच इज 14, सो 14 हमारा आंसर होगा। ये हमने पूरा हवा में सॉल्व किया, बिकॉज इन्फोसिस में आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं प्रैक्टिस करवाना चाह रहा था आपकी, ओके। अब मैं एक बार इसको लिखकर एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या हुआ है। सबसे पहले पहली कंडीशन में जाते हैं, इफ x इज ग्रेटर देन y, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 16 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। एल्स हो गया y इक्वल्स टू x डिवाइड बाय 2, सो y की वैल्यू यहां पर अपडेट होकर क्या हो जाएगी x डिवाइड बाय 2 विच इज 10 डिवाइड बाय 2 विच इज 5, तो x की वैल्यू तो अभी कितनी है 10 है, y की 5 है और z की कितनी है 3। अब नेक्स्ट कंडीशन में गए, इफ z इज ग्रेटर देन y, तो z की वैल्यू क्या है 3, इफ इट इज ग्रेटर देन y, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी। एल्स y इक्वल्स टू z डिवाइड बाय 2, तो z की वैल्यू क्या है 3, डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 1, सो यहाँ पर x की वैल्यू रहेगी 10, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और z की वैल्यू रह जाएगी 3। और लास्ट में हमें क्या प्रिंट करना है, x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब 10 प्लस 1 प्लस 3, करेक्ट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 14, सो यही हमारा आंसर यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड 5 4 3 2 1, ठीक है। इनिशियलाइजेशन किया है i टू n तक, i की वैल्यू 0 से n-2 जा रही है। अब देखो n-2 जा रही है मतलब क्या, ये वाला जो एलिमेंट है वो यहाँ पर कैलकुलेट होगा, मतलब ये वाला जो एलिमेंट है ये इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। 0 से लेके मतलब स्टार्ट यहाँ से होगा और इस जगह तक जाएंगे हम। एरे ऑफ i इक्वल्स टू एरे ऑफ i मल्टीप्लाई बाय एरे ऑफ i प्लस 1, एरे ऑफ i इज इक्वल्स टू एरे ऑफ i, ओके, मल्टीप्लाई बाय एरे ऑफ i प्लस 1, सिंपल है। सो एरे ऑफ आई मतलब 0 से स्टार्ट होगा, दैट इज 0 मल्टीप्लाई बाय एरे ऑफ 1, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर 20, क्योंकि 5 4 है।
सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, एरे ऑफ आई मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय अगला एलिमेंट विच इज 3, तो 12 हो जाएगा। फिर ये दोबारा से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 6, फिर ये दोबारा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2। फिर लास्ट एलिमेंट को तो हमें एज इट इज रखना है बिकॉज लास्ट एलिमेंट से पहले ही लूप एंड हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 20 12 6 2 1। सो देख लेते हैं कहां पे है ये, 20 12 6 2 1, दिस वुड बी अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, और ये पूरा सेट यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, और मैं आपको ऐसे अभी एक सेट सॉल्व करवा चुका हूँ, दिस वाज द सेकंड सेट। एंड अगर आप इस प्रकार के और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको सूडो कोड्स में कंपनी के स्क्रीनशॉट्स के साथ आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस, जो कंपनी के स्क्रीनशॉट्स हैं वो उसके साथ आपको सूडो कोड्स प्रोवाइडेड है। एंड बाकी के भी सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर इंक्लूडेड हैं यहाँ पर अर्जुन मॉक सीरीज में, इसमें सभी प्रकार के मॉक टेस्ट अवेलेबल है सारे सब्जेक्ट्स के, तो आप इसको परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जरा। कैलकुलेट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड, w इक्वल्स टू 21 एंड x इक्वल्स टू 11। ठीक है, अब इसको भी हवा में करना है, चलो लेकिन अभी पहले मैं लिख के ही समझा देता हूं, हवा में तो कर लेंगे बट समझा देता हूं, ठीक है। फॉर ईच y फ्रॉम 21 टू 30, मतलब y की जो वैल्यू है वो 21 से लेके 30 तक लूप करेगी। फॉर ईच z फ्रॉम -1 टू 0, मतलब z की वैल्यू -1 से कहां तक जाएगी, 0 तक, मतलब कितनी बार लूप चलेगा, -1 पे चलेगा और 0 पे चलेगा। W इक्वल्स टू, मतलब दो लूप्स हैं, ये आउटर हो गया ये इनर हो गया, W इक्वल्स टू W माइनस 1, सो W की वैल्यू क्या है 20, सो 20 माइनस 1 20 सॉरी 21, सो 21 माइनस 1 क्या हो जाएगा 20, तो W की वैल्यू क्या हो गई 20। इफ W इज ग्रेटर देन Y, सो W की वैल्यू क्या है 20, इफ इट इज ग्रेटर देन Y, Y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, Y की वैल्यू हमारी चालू हो रही है 21 से, ठीक है, सो इट इज नॉट ग्रेटर देन Y, सो ये यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, तो हम जाएंगे, तो फिर हमें क्या करना है W इक्वल्स टू 1, सो अब W की वैल्यू अपडेट होकर क्या हो जाएगी 1। इफ W इज ग्रेटर देन Z, जंप आउट ऑफ लूप, सो W इज इक्वल्स टू 1, जंप आउट ऑफ लूप, मतलब जो इनर लूप है वो ब्रेक हो जाएगा बिकॉज Z की वैल्यू क्या यहाँ पर क्या है -1, सो ये आउट ऑफ लूप यहाँ पर जंप कर जाएगा। और Z की वैल्यू अगर आप देखोगे तो कभी भी यहाँ पर 1 जो 1 है वो हमेशा बड़ा ही रहेगा Z से, क्योंकि Z की वैल्यू -1 है और 0 है, यही हो सकती है मैक्सिमम। एंड इसमें लिखा है इफ W इज ग्रेटर देन Z, जंप आउट ऑफ लूप, तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि अगर हम इस कंडीशन में जा रहे हैं तो हमेशा हम आउट ऑफ लूप हो जाएंगे, बिकॉज W की वैल्यू हमेशा हर कंडीशन में Z से बड़ी ही रहेगी, क्योंकि Z की वैल्यू है तो -1 है 0, इतनी चीज हमें समझ में आ गई। तो अगर हम इस कंडीशन में जाते हैं तो हमेशा हमें आउट ऑफ लूप जाना है, ठीक है, तो आउट ऑफ लूप चले गए। अब यहाँ पर Y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट हो गई, क्योंकि 21 से स्टार्ट हुआ था 22, तो हमें यह भी समझ में आ गया कि जो Y की वैल्यू है वो 21 से ज्यादा ही होगी, करेक्ट। एंड W की वैल्यू यहां पर हमने क्या इनिशियलाइज कर दी थी 1, करेक्ट, 1 यहां पर इनिशियलाइज कर दी थी, तो ये वाली जो कंडीशन है ये हमेशा ही फॉल्स होने वाली है, ये वाली, क्योंकि W इक्वल्स टू W माइनस 1, तो हमने यहां पर वैल्यू क्या कर दी थी असाइन 1, सो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, क्या 0 बड़ा है Y से विच इज 22, और आगे फ्यूचर में भी जाके जो Y की वैल्यू है वो बढ़ेगी लूप में, करेक्ट। तो ये जो कंडीशन है वो हमेशा से ही फॉल्स होने वाली है फ्यूचर में भी, क्योंकि Y की वैल्यू क्या होगी 22 23 24 25 आगे चलते हुए लूप्स में अंटिल 30, और जो W की वैल्यू है वो 1 ही सेट रहने वाली है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो हमेशा हम इसी पॉइंट पे जाएंगे और W की वैल्यू जो है वो 1 पे आ जाएगी, इसका मतलब W की वैल्यू 1 ही होने वाली है, और यहाँ पर जो हमारा लूप है वो एग्जिट ही होगा। सो ये चीज हमें समझ में आ गई है कि पूरे लूप में यही सब होने वाला है। लास्ट में है एंड फॉर प्रिंट W प्लस एक्स, ठीक है, अब इसमें लिखा है प्रिंट W प्लस एक्स, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 11, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 11, प्लस हमें वैल्यू करना है W की, ठीक है। अब जब W की हमें यहाँ पर जो है वो वैल्यू यहाँ पर ऐड करनी है, तो हमें जब पता है कि वैल्यू यहाँ पर W की बार बार क्या सेट हो रही है, W की वैल्यू बार बार क्या सेट हो रही है 1, तो जब लूप एंड होगा तब भी जो W की वैल्यू क्या होगी वो 1 ही होगी, बिकॉज हर टाइम वो लूप चल रहा है और सेम ही कंडीशंस में हम जा रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 11 प्लस 1 विच इज 12, सो 12 वुड बी अवर आंसर। ओके, सो आई होप ये सेट भी हमने पूरा सॉल्व कर लिया है सूडो कोड्स का, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एवरीवन। सो इस वीडियो से हम अपने कैपजेमिनी की प्रिपरेशन सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, और देखो मैं कुछ चीजें आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये पार्ट 1 वीडियो है, इसमें कुछ बेसिक्स को हम समझेंगे, इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 आपके ऊपर है,
आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे ये सीरीज उतनी बड़ी जाएगी। तो सबसे पहले तो इस सीरीज की अगर आप कोई भी वीडियो देखोगे मैक्सिमम लाइक चाहिए, बिकॉज अभी जो कॉग्निजेंट वाले बच्चे थे उन्होंने यही किया, हर वीडियो पे बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया, इसलिए उनके लिए एक फुल प्रिपरेशन कोर्स यूट्यूब पे फ्री पे डाला है हमने। अब अगर आप देखोगे तो मल्टीपल वीडियो सेट्स वगैरह सब सॉल्व कराए हैं कॉग्निजेंट के लिए, उसी प्रकार से कैप जेमिनी में भी मैं सॉल्व कराऊंगा, बट बस रिक्वायरमेंट वही है कि आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा वीडियोस को, बिकॉज अगर बच्चे ही वीडियो नहीं देखते तो फिर हमारा भी मन नहीं करता कि वीडियो डाल के क्या ही करेंगे अगर बच्चे देख ही नहीं रहे हैं तो, ठीक है। तो अभी तो मैं एक दो तीन वीडियो तो डालूंगा, बट आपके सपोर्ट के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। सो मेक श्योर टू सपोर्ट द वीडियोस, ठीक है। सबसे पहले टेक्निकल असेसमेंट के बारे में थोड़ा समझते हैं। इंग्लिश असेसमेंट बच्चों का कंप्लीट हुआ है, कुछ बच्चों का भी होना है। नेक्स्ट असेसमेंट है यहाँ पर टेक्निकल असेसमेंट, तो इसके बारे में आपको जैसा पता है इसमें लिखा है टेक्निकल असेसमेंट कंसिस्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, फंडामेंटल्स ऑफ डेटाबेसेस, क्लाउड नेटवर्किंग। फॉर रोल स्पेसिफिक टू योर स्ट्रीम टेक्निकल असेसमेंट्स वुड बी कंप्राइज ऑफ स्ट्रीम स्पेसिफिक टॉपिक्स। तो जो टेक्निकल असेसमेंट है वो सब जो इन लोगों ने सिलेबस में मेंशन करके रखा है, लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, फंडामेंटल्स ऑफ डेटाबेस, क्लाउड्स, नेटवर्किंग। सो इसी सबसे रिलेटेड चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा जो लोग इन लोगों ने मेंशन कर रखा है। जनरली यहाँ पर जो कैपजेमिनी है यहाँ पर आपसे जनरली स्यूडो कोड्स पूछती है, और 1 मिनट का टाइम रहता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो उसी लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाऊंगा। एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछती है आपसे, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस भी उसी लेवल के मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऑल्सो वन चीज जो मुझे आपको एक्सप्लेन करनी थी, अगर आप हमारे इस कोर्स के मेंबर हो अर्जुन टेस्ट सीरीज के, तो आपको पूरा बेनिफिट मिलने वाला है कैपजेमिनी के हिसाब से, बिकॉज आगे के भी राउंड्स कवर है, और ये राउंड तो कवर ही है। अगर आप देखोगे तो सीएस फंडामेंटल्स में मल्टीपल जो टेस्ट है वो आप देख सकते हो कवर है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डेटाबेसेस, टेस्टिंग, नेटवर्किंग सब कुछ कवर है। और आज अभी हम इसमें दो दो सेट्स और लेकर आने वाले हैं, तो आपको काफी सारे क्वेश्चंस इसमें देखने को मिल जाएंगे रिलेटेड टू द टेक्निकल असेसमेंट। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के टोटल 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं विद 20 क्वेश्चंस, मतलब 200 क्वेश्चंस आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स में मिल रहे हैं। सूडो कोड्स में आपको देखने को मिल रहे हैं 4 सेट्स, अराउंड 50 to 60 क्वेश्चंस आपको सूडो कोड के देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छा आइडिया आपको हो जाएगा। तो सब कुछ टेक्निकल असेसमेंट का कवर है। आगे के भी जो आपके राउंड्स आएंगे लाइक एसक्यूएल डेटाबेसेस आपने देखा था अभी असेसमेंट में आ रहा है, तो एसक्यूएल के भी क्वेरीज 40 क्वेश्चंस कवर है। तो सब कुछ आपको मिलने वाला है, ऊप्स भी कवर है, सब कुछ, मतलब ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है जो इसमें कवर ना हो, चाहे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, रीजनिंग हो, वर्बल हो, सब कुछ कवर्ड है। तो आप इसको परचेज कर सकते हो, नॉट ओनली फॉर कैपजेमिनी, किसी भी कंपनी के लिए, चाहे कोई भी कंपनी आपके फ्यूचर में आती है, बाद में अगर आपको टेस्ट देना पड़ता है, एक बार इस सीरीज को कंप्लीट कर लो मॉक टेस्ट को, बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा, बिकॉज सारा टाइमर के साथ है, तो विथ टाइमर आप यहाँ पर टेस्ट वगैरह दे रहे होगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर जरा कैप जेमिनी की वीडियो को। तो कैप जेमिनी टेक्निकल असेसमेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, सो ये पार्ट 1 है अपन का, और बाकी के पार्ट्स में भी आई होप आप लोग सॉल्व करोगे। इस पार्ट में हम बेसिकली क्वेश्चन टाइप्स को समझेंगे, किस टाइप्स के क्वेश्चन लास्ट ईयर तक कंपनी पूछती रही है और हमें किस प्रकार से आंसर देने होते हैं। तो बेसिक्स से स्टार्ट हम करेंगे इस वीडियो में। तो देखो सबसे पहले सूडो कोड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और पहला टाइप इस प्रकार का होता है जिसको बोलते हैं आउटपुट टाइप क्वेश्चन। अब ये आउटपुट टाइप क्वेश्चन बेसिकली क्या होता है, इसमें आपको एक सूडो कोड प्रोवाइडेड होगा, और उस सूडो कोड को पढ़कर आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि अगर इसको किसी एरे पर, स्ट्रिंग पर, या फिर किसी नंबर पर रन किया जाएगा तो इसका आउटपुट क्या होगा। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो एरे की वैल्यू है वो है 3, 8, 2, 9 एंड 5, एंड इस एरे पर हम इस कोड को रन कर रहे हैं। अगर इस कोड को हम रन करते हैं तो हमारा जो फाइनल आउटपुट होगा वो क्या होगा, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो आउटपुट पूछा गया है वो क्या होगा, वो यहाँ पर लिखा है प्रिंट सम, मतलब जो भी हम सम को प्रिंट करा रहे हैं वही आउटपुट आएगा, तो हमको सम की वैल्यू फाइंड करनी है। सो लेट्स डीप डाइव इनटू इट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। सबसे पहले सूडो कोड्स में आपको एक एक लाइन पढ़कर नीचे उतरना है। तो जब सबसे पहले आप देखोगे एरे का डिक्लेरेशन हुआ है, एक भी लाइन अगर आप मिस करते हो पढ़ने में तो गलती हो जाती है, तो मैं आपको उसी तरीके से समझा रहा हूं जिस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले आप पहली लाइन पढ़ोगे जिसमें एरे का डिक्लेरेशन है, ओके दिस इज डन। सेकंड लाइन पढ़ोगे जिसमें वैल्यू का डिक्लेरेशन इसमें हुआ हुआ है सम इक्वल्स टू 0, तो हमको ये पता पड़ेगा कि अभी जो सम की वैल्यू है वो कितनी है, 0, ठीक है। अब ये कह रहा है फॉर आई की वैल्यू 0 है और 0 से लेके 4 तक हमें लेकर जानी है, मतलब इसका ये रहेगा सीन 0,
चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा और 4 चलेगा। तो टोटल ये जो लूप है वो यहाँ पर 5 बार चलने वाला है, 0, 1, 2, 3 एंड 4, बिकॉज 0 से 4 तक जब भी ऐसा कुछ लिखा हुआ आए आपके सूडो कोड में कि 0 से लेके 2, 4, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ एक्सक्लूड करना है। इसका मतलब है कि जो आपको लूप है वो इस नंबर तक चलाना है। तो अगर लिखा है आई की वैल्यू 0 असाइन है और 2, 4 तक चलाना है, मतलब आपको इसको 4 वैल्यू तक चलाना पड़ेगा। मतलब 0, 1, 2, 3 एंड 4, टोटल 5 टाइम्स जो है वो आपका ये लूप रन करेगा। ठीक है। अब इसमें लिखा है इफ एरे ऑफ आई मॉड्यूलस बाय 2 इक्वल्स टू 0 देन सम प्लस एरे ऑफ आई। तो कह रहा है इफ एरे ऑफ आई मॉड्यूलस बाय 2, मतलब सीधी सीधी वैल्यू अगर कोई इवन है तो ये हमारी कंडीशन पास होगी, बिकॉज मॉड्यूलस बाय 2 इक्वल्स टू 0 तभी होता है जब वैल्यू इवन है। तो हमें क्या करना है, सम प्लस एरे ऑफ आई, मतलब उस वैल्यू को ऐड करना है। तो अगर आप देखोगे तो जो 3 है वो तो इवन है नहीं, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। फिर आया 8, अब 8 जो है वो इवन है तो ये सम में ऐड हो जाएगा, बिकॉज सम इक्वल्स टू सम प्लस एरे ऑफ आई। तो अभी जो हमारी सम की वैल्यू है वो यहां पर हो जाएगी 8। उसके बाद है यहां पर 2, तो क्या 2 इवन है? यस, 2 भी इवन है, तो 2 भी इसमें ऐड हो जाएगा। फिर आया 9, क्या ये इवन है? नहीं है। फिर आया 5, क्या ये इवन है? नहीं है। तो सम की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी? 10। सो लास्ट में अगर आप देखोगे तो जो प्रिंट सम लिखा हुआ है उसकी वैल्यू यहां पर आ जाएगी 10। ठीक है। अब कभी कभार क्या होता है ना, कंफ्यूज करने के लिए मैं आपको बताता हूं ये लोग क्या कर लेते हैं। सपोज यहां पर सम की वैल्यू यहां पर इन्हें 0 डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब ये जो सम है उसी से रिलेटेड कोई वेरिएबल को इस लूप के अंदर डिक्लेयर करेंगे और लास्ट में लिख देंगे प्रिंट सम। तो बच्चा क्या समझता है कि पूरा यहां पर सम हो जाएगा, तो जो फाइनल आंसर है वो 10 आएगा। बट आपको ये चीज देखना है कि कौन सा वेरिएबल लूप के ऊपर डिक्लेयर है, कौन सा वेरिएबल लूप के नीचे डिक्लेयर है। अगर इनसाइड लूप डिक्लेयर है वेरिएबल, तो जो भी इनिशियल वैल्यू असाइंड है वही आएगी, मतलब 0 ही आएगा। ऐसा कभी कभार ये लोग कर देते हैं, मैं आपको एक वेरिएशन बता रहा हूं। तो ये चीज जरूर चेक करना कि वेरिएबल कहीं ऐसा तो नहीं है कि लूप के अंदर असाइन कर दिया हो, तो जब बाहर प्रिंट कराओगे तो जो वैल्यू आएगी वो 0 ही रहेगी, या इनिशियल वैल्यू जो भी असाइन है वही रहेगी। इस क्वेश्चन में जबकि अगर आप देख सकते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सम की वैल्यू जो है वो लूप के बाहर ही यहाँ पर असाइंड है। तो इसलिए हम जब सम को प्रिंट करेंगे तो आंसर हमारा 10 ही आने वाला है, पूरी एल्गोरिथम को हमने समझा है। तो ये होता है आउटपुट टाइप का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगले टाइप की तरफ चलते हैं जो आता है सिंटैक्स एरर बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है कि सिंटैक्स एरर आपसे या फिर कोई एरर होता है तो वो पूछा जाता है। अब एक चीज मैं आपको हमेशा बताना चाहूंगा कि जब भी हम सूडो कोड की बात करते हैं, तो अगर इस प्रकार का कोई सूडो कोड आ रहा है तो हमेशा किसी भी चीज के साथ एंड कोड यूज होता है। जैसे अगर इफ लिखा हुआ है तो उसके साथ एंड इफ होगा, अगर फॉर लिखा हुआ है तो एंड फॉर होगा। तो इस प्रकार से एंड हमेशा मेंशन किया जाता है इस प्रकार के सूडो कोड्स में, जो इस प्रकार से प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आप देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है क्लियरली, स्टार्ट करना है हमारे फंक्शन को, इनपुट लिया हमने n, ठीक है। फैक्टोरियल की वैल्यू, जो भी फैक्ट की वैल्यू है वो 1 है। आई की वैल्यू यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, आई की वैल्यू असाइन करी है 1 टू n, मतलब आई की वैल्यू 1 से चलेगी n तक, ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, ये भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लिखा है प्रिंट फैक्ट, ठीक है। तो यहां पर फैक्टोरियल को यहां पर प्रिंट करना है, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये सिंटेक्स एरर हो जाएगा, बिकॉज अगर आप देखोगे तो यहां पर किसी भी प्रकार से इस फॉर लूप को यहां पर एंड नहीं किया गया है, और ये सिंगल स्टेटमेंट फॉर लूप नहीं है। अगर आप देखोगे तो यहां पर नेक्स्ट स्टेटमेंट में लाइन लिखी हुई है, अगर सिंगल स्टेटमेंट होता तो एरर नहीं आता, बट कि इसके नीचे ये लाइन मेंशन करी गई है। फॉर एग्जांपल ये यही बात हो गई कि आप किसी फॉर लूप को इस प्रकार से कुछ डिक्लेयर कर रहे हो अपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, फिर आपने यहाँ पर ब्रेसेस यूज नहीं करे, बट आपने इस जगह पर कुछ अपनी स्टेटमेंट लिख दिया और फिर नीचे आपने कोई स्टेटमेंट लिख दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो इस कोड को सही तरीका है इसको चलवाने का, उसके लिए यहाँ पर इसका एंड फॉर होना चाहिए था, मतलब इस फॉर लूप को एंड होना चाहिए था। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर मिसिंग एंड फॉर जो होगा वो इसका आंसर होगा। रॉन्ग इनिशियलाइजेशन ऑफ फैक्ट ये नहीं होगा, एंड प्रिंट शुड बी इनसाइड द लूप ये भी नहीं होगा, तो नो एरर भी नहीं होगा। तो इसका आएगा हमारा आंसर मिसिंग एंड फॉर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो क्या ये किस प्रकार का है, तो ये है एल्गोरिथम बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको एक एल्गोरिथम दी जाएगी, एंड जरूरी नहीं है, जैसे इसमें तो मैंने इजी करने के लिए जो वेरिएबल्स हैं उसकी वैल्यू उसी प्रकार से लिख दी है। हो सकता है लार्जेस्ट की जगह यहाँ पर लिखा हो x इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट, एंड सेकंड की जगह यहाँ पर लिखा हो y इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट। अब आपको पूरा, अगर क्योंकि इसको हम इस प्रकार से पढ़ रहे हैं तो ये इजी लगेगा आपको समझने में, बट अगर वेरिएबल का नाम ये नहीं होगा तो आप पूरा चेक करोगे
समझोगे कि एक्चुअली जो कोड है वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है, इसको जरा रन करते हैं। फॉर ईच एलिमेंट एक्स इन एरे, ओके, सो बेसिकली हमें एक एरे दिया गया है जिसकी जो वैल्यू है वो है 12, 5, 28 एंड 15। ठीक है, अब ये कह रहा है फॉर ईच एलिमेंट एक्स, मतलब हम जैसे ये बोल सकते हो आप, जैसे अपन फॉर लूप में फॉर ईच लूप लगाते हैं ना, तो फॉर ईच लूप में हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट का नाम यहाँ पे लिखते हैं और सामने एरे का नाम लिखते हैं, राइट, इस प्रकार से। तो ये यही बोल रहा है कि ईच एलिमेंट इन एक्स, मतलब एक एक करके ये जो एलिमेंट्स हैं वो एक्सट्रैक्ट होंगे, सबसे पहले 12, फिर 5, फिर 20, ऐसे करके। Do if x is greater than largest, okay, if x is greater than largest, तो सपोज अभी आया 12, तो क्या 12 लार्जेस्ट से बड़ा है, तो हमने इसको माइनस इनफाइनाइट से असाइन किया, तो अभी जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, फिर रिप्लेस होके 12, बिकॉज ये माइनस इनफाइनाइट से बड़ा है। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि लार्जेस्ट की वैल्यू हमें x को असाइन करनी है और सेकंड की वैल्यू लार्जेस्ट को असाइन हो जाएगी। और जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट की वैल्यू है, सो बेसिकली दो वेरिएबल्स हैं, ये है हमारा लार्जेस्ट, ठीक है, एंड ये है हमारा सेकंड। ठीक है, तो हमारा जो लार्जेस्ट की वैल्यू है वो 12 असाइन हो जाएगी और जो सेकंड की वैल्यू है वो लार्जेस्ट की हो जाएगी, मतलब लार्जेस्ट की जो प्रीवियस वैल्यू थी तो वो थी माइनस इनफाइनाइट, तो यहाँ पर अभी सेकंड की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट ही रहेगी। ठीक है, अब अगला एलिमेंट फिर से एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा अगला एलिमेंट है 5। अब हम चेक करेंगे क्या 5 लार्जेस्ट से बड़ा है, तो अगर आप देखोगे तो लार्जेस्ट की वैल्यू अभी हमारी क्या है, 12। ठीक है, तो 12 है अभी हमारे लार्जेस्ट की वैल्यू, लार्जेस्ट की वैल्यू है 12। ठीक है, तो 5 लार्जेस्ट से बड़ा नहीं है, क्या ये सेकंड से बड़ा है, तो यस, सेकंड की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है, ये सेकंड से बड़ा है। सो अब यहाँ पर जो वैल्यू है सेकंड की वो रिप्लेस होके हो जाएगी 5। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है कि सेकंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे एरे का आया 20, तो हम चेक करेंगे क्या 20 लार्जेस्ट से बड़ा है, तो लार्जेस्ट की वैल्यू है 12, तो हाँ जो 20 है वो लार्जेस्ट से बड़ा है, मतलब 12 से बड़ा है। सो इसकी वैल्यू रिप्लेस होके अब क्या हो जाएगी, 20। ठीक है, इस कोड के हिसाब से। और सेकंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी लार्जेस्ट में स्टोर है, तो लार्जेस्ट की वैल्यू पहले क्या थी, 12, तो सेकंड की वैल्यू अब यहां से रिप्लेस होकर क्या हो जाएगी, 12। तो अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली जो कोड है वो क्या स्टोर कर रहा है, लार्जेस्ट एलिमेंट को स्टोर करेगा एंड सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट को स्टोर करेगा। एंड ये मैंने आपको इजीली भी एक्सप्लेन कर सकता था, बट यहां पर चूंकि लार्जेस्ट एंड सेकंड लिखा हुआ है, सपोज इसकी जगह अगर कुछ भी होता, सपोज लिखा होता ए एंड बी, तो हमें इतने इजीली नहीं समझ पाते, बट यहाँ पर कोड में लार्जेस्ट एंड सेकंड लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा कोड रन करके दिखाया कि एक्चुअली हमें क्या एल्गोरिथम पकड़नी है। तो बेसिकली ये एल्गोरिथम हमें बता रही है लार्जेस्ट एलिमेंट एंड सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। लास्ट में लिखा हुआ है प्रिंट सेकंड, मतलब सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द एरे की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो इसमें है 12, 5, 20, 8 एंड 15, सेकंड लार्जेस्ट जो एलिमेंट है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15। तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो ये भी एल्गोरिथम बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, एंड इसमें भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो वेरिएबल नेमिंग है वो अप्रोप्रिएट है, अगर अप्रोप्रिएट नहीं होगी तो आप कैसे समझोगे, कोड को रन करेंगे। सबसे पहले स्ट्रिंग की जो वैल्यू है वो असाइन है लेवल, ओके, लेवल ये असाइन करी गई है। लेफ्ट की वैल्यू असाइन करी गई है 0 से, और राइट की स्ट्रिंग की जो भी लेंथ है, मतलब लास्ट से स्टार्ट होगा, लेफ्ट से राइट तक लूप जा रहा है, मतलब फर्स्ट एल से लेके लास्ट एल तक जाएगा। इफ और पैलेंड्रोम की वैल्यू ट्रू असाइन करिए, अगर लेफ्ट इज नॉट इक्वल्स टू राइट देन पैलेंड्रोम की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, तो सीधा सीधा पता पड़ रहा है कि ये पैलेंड्रोम का कोड है। ठीक है, अदरवाइज हम क्या कर देंगे, लेफ्ट इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस वन एंड राइट इक्वल्स टू राइट प्लस वन एंड वाइल। इसका मतलब इस अगर ये लिखा हुआ है लेवल, ओके, सपोज ऐसे लिखा हुआ है लेवल, ये हमारे स्ट्रिंग की वैल्यू है। सबसे पहले ये इस एल को इस एल से मैच करेगा, क्या ये दोनों सेम है, यस सेम है, तो लूप को कंटिन्यू करेंगे। ये ई एंड ए, क्या ये सेम है, यस सेम है, लूप को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट में बचता है वी, तो जो भी हमारा लास्ट में बचा वो भी आपका जो वी है वो वी से सेम है, तो ये भी सही है। तो लास्ट में जो पैलेंड्रोम की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ट्रू। तो ये पैलेंड्रोम का कोड है और लेवल चूंकि पैलेंड्रोम है तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ट्रू। सो ये भी एक एल्गोरिथम टाइप का ही क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने रखा हुआ है। एंड इसमें चूंकि नेमिंग अप्रोप्रिएट है इसलिए आप इजीली कर पा रहे हो, ये मैं आपको जस्ट समझाने के लिए सारे क्वेश्चंस कर रहा हूँ। अपन आगे की भी वीडियोस लाएंगे जिसमें और भी क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे। अभी मैं आपको सारे टाइप्स वगैरह सारी जो बेसिक चीजें हैं वो सिखा रहा हूँ, इसको जरा सीखते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कैपजेमिनी में पूछा गया था, लास्ट ईयर का जो एग्जाम हुआ था कैपजेमिनी का, ऑन कैंपस का क्वेश्चन है ये जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एंड देखता हूँ मैं आप लोगों में से कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है,
तो और भी जो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो जैसे मैंने आपको बताया हुआ है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे मॉक टेस्ट में, ठीक है। तो मॉक टेस्ट में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी सूडो कोड्स के जो टेस्ट है वो प्रोवाइडेड है, डेटा स्ट्रक्चर्स के प्रोवाइडेड है, सब कुछ प्रोवाइडेड है, चाहे वो कैपजेमिनी हो चाहे वो कोई भी कंपनी हो। एमसीक्यूज क्वेश्चन, सीएस फंडामेंटल्स के भी प्रोवाइडेड है, सब कुछ प्रोवाइडेड है। तो आप परचेज कर सकते हो मॉक टेस्ट को, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्राइस ओनली 250 रुपीज है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये ऑन कैंपस का क्वेश्चन है लास्ट ईयर का, ध्यान से सुनना। ये बोल रहे हैं कि नम की जो वैल्यू है वो है यहाँ पर 942, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इस कोड को, समझ में अभी नहीं आ रहा है कि ये किस प्रकार का है कोड, तो स्टार्ट करेंगे। ये कह रहा है कि भाई जो लूप है वो तब तक चलेगा जब तक जो नम की वैल्यू है वो 10 से बड़ी है। सो अभी तो 942 है, ठीक है, 10 से बड़ी है, एंटर करते हैं जरा। ये कह रहा है सम की वैल्यू को असाइन किया है 0, ठीक है, यहां तक भी क्लियर है। अब इसके अंदर एक और लूप है, वो ये बोल रहा है कि अगर नम की वैल्यू जब तक 0 से बड़ी है, ऊपर है 10 से बड़ी, नीचे है 0 से बड़ी, तब तक हमें करना है सम इक्वल्स टू सम प्लस नम हैशटैग बेसिकली मॉड्यूलस बाय 10 एंड नम इक्वल्स टू नम डिवाइड बाय 10। तो सीजे ये तो हमें पता है ये डिजिट एक्सट्रैक्शन का कोड होता है, क्योंकि जब इसमें लिखा है सम इक्वल्स टू सम प्लस नम, ओके, मॉड्यूलस बाय 10, तो इससे क्या होगा, जो वो भी लास्ट डिजिट है वो एक्सट्रैक्ट हो जाती है। तो सबसे पहले 942 में 2 एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, और फिर ये कह रहा है नम को हमें 10 से डिवाइड करना है। तो जो 942 है वो किस में तब्दील हो जाएगा, 94 में, और जो लास्ट की डिजिट है 2 वो सम में ऐड हो जाएगी, तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। एंड जो डिजिट है हमारे पास वो क्या रह जाएगी, या नम आप बोल सकते हो, वो रह जाएगी 94। अब ये लूप फिर से कंटिन्यू होगा। अब ये कहेगा सम इक्वल्स टू सम प्लस, तो दोबारा से जो डिजिट बची है, लास्ट डिजिट हमारे पास क्या बची, 4, तो 4 इसमें ऐड हो जाएगा सम में, तो 2 प्लस 4 हो जाएगा। एंड डिवाइड बाय 10 होगा, तो डिजिट हमारी 94 से हटकर क्या हो जाएगी, 9, ठीक है। अब ये लूप दोबारा कंटिन्यू होगा, क्योंकि 0 से बड़ी वैल्यू तक ये कंटिन्यू करना है। तो दोबारा से होगा सम सम प्लस नम मॉड्यूलस बाय 10, तो अब क्या अकेली डिजिट बची है हमारे पास 9, तो 9 भी इसमें प्लस हो जाएगी। एंड नम इक्वल्स टू नम डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, तो हमारे पास 9 है, इसको डिवाइड कर देंगे 10 से, तो क्या बचेगा हमारे पास डिजिट में, 0। सो हमारी डिजिट जो है वो फाइनली 0 हो चुकी है, और जो सम की वैल्यू है वो क्या है, 9 प्लस 4 प्लस 3, मतलब ये डिजिट का सम है। सो दिस वुड बी 9 प्लस 4 प्लस 3, सॉरी 9 प्लस 4 प्लस 2, बिकॉज लास्ट डिजिट हमारी 2 थी। सो ये हो जाएगा, अगर आप देखोगे कैलकुलेट करके, तो 15, ओके। सो हमारा ये डिजिट सम आ चुका है 15, ठीक है। सो अभी जो हमारे सम की वैल्यू है वो कितनी है, 15, और डिजिट की वैल्यू हो चुकी है 0, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई जो भी नम है उसमें सम की वैल्यू को असाइन कर दो। तो हमारा जो भी नम की वैल्यू है वो हो जाएगी सम की वैल्यू, दैट मींस 15, ओके। तो नम की वैल्यू हो गई 15। अब ये कह रहा है कि अब क्योंकि हम इस लूप से बाहर आ गए, राइट, ये वाला लूप तो हमारा पूरा खत्म हो चुका, तो ये वाला लूप की वैल्यू हमारी हटा दो। अब इस लूप में हमारी क्या वैल्यू आ गई, नम की 15। अब ये दोबारा से लूप पे जाएगा, चेक करेगा कि क्या नम की वैल्यू 10 से बड़ी है, हाँ अभी भी बड़ी है, 15 है। तो ये लूप फिर से चालू होगा दोबारा से, ठीक है, और सम की वैल्यू फिर से असाइन होगी 0, और दोबारा से इंटरनल कोड यूज होगा। तो ये जो 15 है, अब हमारे पास जो डिजिट बच गई वो क्या बच गई, 15। तो अब ये जो डिजिट है 15, इसके भी जो डिजिट्स हैं उसका सम होगा, दैट इज 1 प्लस 5, तो वो क्या हो जाएगा, 6। तो अब जब ये इंटरनल लूप इसको 6 कैलकुलेट करेगा, फिर नम की वैल्यू दोबारा से क्या असाइन हो जाएगी बाहर, 6, राइट। तो नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। फिर ये चेक चेक करेगा क्या नम की वैल्यू 10 से बड़ी है, तो नहीं है। फाइनली जो 6 है वो हमारा आंसर होगा, एंड इसका जो आउटपुट आएगा वो 6 आएगा। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये किस चीज का कोड था, ये कोड था इंडिविजुअल डिजिट सम्स का, मतलब ओनली डिजिट सम्स का। तो अगर आप देखोगे तो ये कोड था 942 में, सबसे पहले हम इंडिविजुअल डिजिट्स का सम करेंगे, तो दैट इज 9 प्लस 4 प्लस 2 विच इज 15, देन 15 अगेन वी विल सम इट जब तक ये सिंगल डिजिट में नहीं रह जाता। सो दैट इज 5 प्लस 1 विच इज 6, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6। सो मैंने आपको पूरा एल्गोरिथम एक बार गो थ्रू करके दिखाया है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो ऐसे गो थ्रू कर लेना आप, और अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं आराम आराम से बता रहा हूं, वरना इजीली आप 1 मिनट में कर सकते हो। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये कैपजेमिनी का, आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। एक क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं, लास्ट क्वेश्चन को। और अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख लिया है, आपने देखा होगा मेरी टीचिंग काफी क्लीन है, मैं सारी चीजों को बहुत अच्छे से कोशिश करता हूँ आपको समझ में आए, सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया है तो बस यही कहूंगा कि सपोर्ट आप कर सकते हो, कमेंट में आप कुछ भी कमेंट प्यार भरा कर सकते हो, और लाइक कर सकते हो वीडियो को। अगर आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने तो मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हो। एंड बस एक ही चीज बोलूंगा,
वैसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप बस इस सीरीज को कंप्लीट करना जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। ये अपन बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं और आगे भी और वीडियोस आती रहेंगी। सो ए की वैल्यू है 0 और बी की वैल्यू है 1, प्रिंट करना है ए कॉमा बी, तो सबसे पहले 0 कॉमा 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को मैं। फिर लूप चल रहा है आई इक्वल्स टू 3 से लेके 6 तक, मतलब लूप कितनी बार चलेगा, 3 4 5 6, 4 टाइम्स चलेगा। ठीक है, कह रहा है सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, फिर लिखा है प्रिंट सी, तो 1 फिर से प्रिंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 1 कॉमा 1। फिर ये कह रहा है ए की वैल्यू जो है वो बी में असाइन कर दो। ठीक है, तो ए की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 1, क्योंकि अभी बी की वैल्यू 1 थी, एंड बी की वैल्यू में सी असाइन कर दो, मतलब सी की वैल्यू जो भी है वो बी में असाइन कर दो, तो सी की भी वैल्यू 1 है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। फिर से ये लूप कंटिन्यू होगा जिसमें लिखा है सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो 2 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एंड उसके बाद फिर से वही चीज चलेगी कि ए की वैल्यू में ए की जो भी बी की वैल्यू है वो ए में असाइन कर दो और सी की वैल्यू बी में असाइन कर दो। तो बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, बी की वैल्यू है 1, तो ए की वैल्यू अभी 1 ही आ जाएगी, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू में सी असाइन करना है, इसलिए बी की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा लूप कंटिन्यू होगा सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, मतलब 2 प्लस 1, तो विच इज 3, 3 यहां पर प्रिंट हो जाएगा। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर से वही चीज चलेगी कि ए की वैल्यू में बी असाइन कर दो और बी की वैल्यू जो भी बी के जो भी वेरिएबल है उसमें सी की वैल्यू असाइन कर दो। सो बेसिकली जो ए है उसमें बी की वैल्यू असाइन हो जाएगी, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी सी की वैल्यू है दैट इज 3। फिर उसके बाद दोबारा से ये लूप चलेगा ए प्लस बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 5। फिर उसके बाद फिर से ये असाइनिंग होगी, बट अब हमारा लूप जो है वो कंप्लीट हो चुका है बिकॉज 4 बार चल चुका है, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा 0 1 1 2 3 5, तो ये हमारा आंसर होगा विच इज नथिंग बट फिबोनाची सीरीज। तो ये फिबोनाची सीरीज का कोड है विच इज अवर आउटपुट। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। पूरा ये पार्ट 1 था वीडियो का जिसमें हमने कुछ सूडो कोड्स को सॉल्व किया है। आगे आने वाली वीडियोस में और टाइप के और क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कैपजेमिनी के गेम बेस्ड एप्टीट्यूड असेसमेंट के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि कैपजेमिनी में यहाँ पर गेम बेस्ड एप्टीट्यूड पूछा जाता है। इस वीडियो में हम उसी को समझेंगे और साथ साथ में हम कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। साथ साथ में अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो आपको बस 2 काम करने हैं, आप वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में लिख देना पार्ट 2 नीडेड, और मैं इसका सेकंड पार्ट क्रिएट करूंगा विथ मोर क्वेश्चंस। ठीक है, तो बस आपको इतना लिखना है पार्ट 2 नीडेड। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, ये गेम बेस्ड जो आपका एप्टीट्यूड है इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कैपजेमिनी के एग्जाम में बेसिकली आपसे गेम बेस्ड एप्टीट्यूड पूछा जाता है। ओके, तो ये एक अलग टाइप का एप्टीट्यूड होता है और अगर आप इसकी थोड़ी भी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप इसको आसानी से क्लियर कर पाओगे। मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाता हूं इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके पैटर्न को समझना। यहाँ पर आपको डिडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग के 6 मिनट के ड्यूरेशन के साथ क्वेश्चंस देखने को जनरली मिलते हैं, जिसमें आपको एक मिसिंग सिंबल फाइंड करना पड़ेगा 4x4 या फिर 5x5 ग्रिड में। इसके क्वेश्चन आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कि 4x4 या फिर 5x5 के जो आपका ग्रिड होता है उसमें आप कैसे यहाँ पर सिंबल्स को फाइंड कर सकते हो, और इसके और क्वेश्चंस भी मैं आपको जरूर यहाँ पर प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर आते हैं विजुअल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। इसका भी क्वेश्चन मैं आज आपको सॉल्व कराने वाला हूं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि विजुअल रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। देन ग्रिड चैलेंज। ये ग्रिड चैलेंज जो है बेसिकली इसमें आपको मल्टीपल ग्रिड्स दिए जाते हैं या आपको ऑपरेशंस दिए जाते हैं जिनको आपको सॉल्व करना होता है, और मैं यहाँ पर आज इसका भी क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ पर 2 ग्रिड्स आइडेंटिकल हैं कि नहीं, उनके कोऑर्डिनेट्स की पोजीशन क्या है, तो उसके बेस पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। मोशन चैलेंज होता है, मोशन चैलेंज को भी आज हम सॉल्व करने वाले हैं। देन आता है स्विच चैलेंज। स्विच चैलेंज आज की वीडियो में नहीं है, बट पार्ट 2 में आपको इसके क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है ये हमारा सेकंड, ये है हमारा थर्ड से। जो पहला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं वो हमारे थर्ड सेक्शन से है, दैट इज ग्रिड चैलेंज। ठीक है, ग्रिड चैलेंज। अब ध्यान रखना है इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको, जरा मैं आपको एक बार दिखाता हूं। बेसिकली आप इसको ग्रिड चैलेंज या फिर इंडक्टिव लॉजिकल या फिर विजुअल रीजनिंग का पार्ट भी बोल सकते हो, इन दोनों में से किसी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये आपको 2 शेप्स दिए हुए हैं। आप पहला शेप देख पा रहे हो, पहले में सर्कल है, फिर प्लस है, फिर डायमंड है एंड उसके बाद ट्राइंगल है।
अब ये कह रहा है इन शेप्स के ऊपर हमने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया है 2413, मतलब जो सेकंड वाला शेप है वो फर्स्ट पे आ जाएगा, फोर्थ वाला शेप सेकंड पे आ जाएगा, थर्ड पोजीशन पे फर्स्ट वाला शेप आ जाएगा और फोर्थ पोजीशन पे थर्ड वाला शेप आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ऐसा क्या चीज इनपुट करें जिससे बाद में हमें जो आउटपुट मिले वो ये मिले, जो आप नीचे देख पा रहे हो। ओके, सो देखो सबसे पहले आप इसको समझो, ये है सर्कल, देन है प्लस, देन है डायमंड एंड देन है ट्राइंगल। ओके, सो अब हम बोल रहे हैं कि इस पहली पोजीशन में हमने 2 को कर दिया, तो पहली पोजीशन पे अगर 2 को कर दिया तो पहली पोजीशन पे क्या आ गया, प्लस। ठीक है, उसके बाद सेकंड पोजीशन पे हमने 4 को कर दिया, तो 4 पे क्या आ गया, ट्राइंगल। उसके बाद हमने थर्ड पोजीशन पे 1 को कर दिया, तो 1 पर तो थर्ड पोजीशन पे क्या आ गया, सर्कल, क्योंकि ये 1 पे था। फिर फोर्थ पोजीशन पे थर्ड को कर दिया, तो इस पर क्या आ गया, डायमंड। सो हमारे पास आ गया प्लस ट्राइंगल सर्कल एंड डायमंड। और हमें आउटपुट में क्या चाहिए, आउटपुट में चाहिए ट्राइंगल, सर्कल, डायमंड और प्लस। तो देखो ट्राइंगल हमें चाहिए आउटपुट में, और ट्राइंगल अभी इनपुट में हमारे पास कौन सी पोजीशन पे है, 2 पर। तो सबसे पहले क्या आ गया हमारे पास आंसर में, 2। उसके बाद हमें चाहिए सर्कल आउटपुट में, सर्कल किस पोजीशन पे है, थर्ड पर, तो हमारे पास क्या आ गया, 3। फिर हमें चाहिए डायमंड, डायमंड कौन सी पोजीशन पे है, फोर्थ पोजीशन पे, तो यहां पर हम लिखेंगे 4। फिर प्लस है, सो प्लस कौन सी पोजीशन पे है, प्लस है पहली पोजीशन पे, तो हम यहां लिखेंगे क्या, 1। सो अगर हम 2 3 4 1 यहां पर इंप्लीमेंट कर दें तो हमारा जो आउटपुट है वो क्या आएगा, जो हमें बताया गया है, ट्राइंगल, सर्कल, डायमंड एंड प्लस। तो आंसर क्या होगा हमारा इसमें, 2 3 4 1, 2 3 4 1, ये हमारा आंसर होगा। और आई होप आप भी मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाओगे और आप आंसर बाद में देखोगे जब मैं सॉल्व कराऊंगा, पहले आप लोग कोशिश करोगे कि आप इसको सॉल्व करो। सो इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 2 3 4 1। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन के साथ क्लियर होगे, कोई भी डाउट नहीं होगा। और ऐसे क्वेश्चंस यहां पर आपको देखने को मिलने वाले हैं, जैसे मैंने ये एक क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस करा दिया, तो डेफिनेटली इससे आपको काफी एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करते कैसे हैं। देन अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो ये विजुअल रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। सो इसमें आपको करना है पिक द ऑड दैट डज नॉट फिट द ग्रुप, ठीक है। तो आपको एक ऐसे बेसिकली ब्लॉक को यहां पर पिक करना है जो इस ग्रुप को फिट नहीं करता, ठीक है। सो आप एक बार क्वेश्चन को देख लो अच्छे से, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, पॉज कर लो वीडियो को। आई होप आप लोगों ने कोशिश करी होगी। सो अब मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इन सब में हमें क्या करना पड़ता है, एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ता है, पैटर्न। ओके, सो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, बस एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। तो पैटर्न कैसा है, अगर आप देखोगे तो ये पहला जो है आपका ग्रुप ए, इसमें जो स्क्वायर है वो आपका सबसे ऊपर हमें दिख रहा है। उसके बाद ये स्क्वायर यहां से मूव आउट किया ऐसे, सो ये जो था ये इसने ऐसे इस तरफ रोटेट किया और सेकंड शेप में स्क्वायर इस पोजीशन पर आ गया, ठीक है। थर्ड सी का जो ऑप्शन है, सी में फिर से स्क्वायर ने रोटेट किया और स्क्वायर हमारे पास इस पोजीशन पर आ गया, ठीक है। अब डी में फिर से स्क्वायर ने रोटेट किया और किस पोजीशन पर आ गया स्क्वायर, इस पोजीशन पर, आप देख सकते हो यहां इस पोजीशन पे आ गया। अब ई है, तो ई पर ये स्क्वायर फिर से रोटेट करके कौन सी पोजीशन पे आना चाहिए था, इस पर, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये ऐसे घूम रहा है, तो ये दोबारा से ऊपर आना चाहिए था, बट ये कहां है, नीचे है। आप देख रहे हो नीचे है ये, तो ये उल्टी डायरेक्शन में मूव किया है। तो ई क्या है, ई हमने पिक कर लिया क्योंकि ये ऑड है, बिकॉज तब से स्क्वायर एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बट अब ई में ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये ऑड हो गया। क्योंकि अगर आप एफ देखोगे तो एफ में ये फिर से राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जी में फिर से राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन अगर आप ई देखोगे तो ये उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहा है ई में, तो इसका आंसर क्या है, ई, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं इसमें, ठीक है। तो आंसर इसका क्या है, ई। क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 हमारा आया है फाइंड द मिसिंग। सो आपको इसमें मिसिंग पार्ट ढूंढना है, ठीक है। सो कैसे ढूंढते हैं मिसिंग पार्ट, जरा मैं आपको बताता हूं। सो देखो आपके पास 5 सिंबल हैं और हर रो और हर कॉलम में यूनिक सिंबल होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक सिंबल अगर एक कॉलम में आ गया या रो में आ गया तो वो रिपीट नहीं हो सकता, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है इसमें हमें ये सिंबल फिट करना है। ये 5 ऑप्शन है हमारे पास, प्लस कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, ट्रायंगल है,
सर्कल है और डायमंड है, ठीक है, स्टार है। ओके, सो ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व क्वेश्चन मार्क वाले को। कैसे करेंगे सॉल्व? तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसमें एक चीज नोटिस करोगे तो यहां पर इस रो में टोटल 3 सिंबल आ सकते हैं, ठीक है, और हमें एक क्वेश्चन मार्क वाला फिल करना है। तो देखो अगर क्वेश्चन मार्क फिल करना है तो ये तो स्क्वायर तो आ ही नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी इस रो में आ चुका है, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर का ऑप्शन है इसको हम हटा देते हैं कि स्क्वायर नहीं आ सकता, क्योंकि जो नहीं आ सकता पहले हम उन्हें हटाएंगे। फिर है ये सर्कल, क्या सर्कल आ सकता है? सर्कल भी नहीं आ सकता क्योंकि सर्कल भी इस रो में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। फिर इस कॉलम में स्टार भी है, तो क्या स्टार आ सकता है? स्टार भी नहीं आ सकता। अब हमारे पास केवल दो ऑप्शन बचे, या तो प्लस आएगा या ट्राइंगल आएगा, ठीक है। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्लस आएगा या ट्राइंगल आएगा? देखो मैं बताता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास इस वाले कॉलम की या इस कॉलम की वैल्यू आ गई तो हम पता कर सकते हैं कि इसमें ट्राइंगल आएगा या प्लस आएगा। तो देखो इस कॉलम में तो अगर आप देखोगे तो पांचों, यहां पर जो आप देखोगे पांचों सेल्स खाली हैं, बट ये जो ये वाला कॉलम है बेसिकली इसमें दो सेल्स भरी हुई हैं, तो हम इसको इजीली फिल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो इसमें स्टार भी है और प्लस भी है, ठीक है। तो हम स्टार और प्लस नहीं फिल कर सकते, ठीक है। इस वाली सेल की बात कर रहा हूं मैं, इस वाली सेल की बात, ठीक है, इस वाली, ध्यान से सुनना। स्टार भी है प्लस भी है, तो स्टार और प्लस को हम फिल नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे पास डब्बा भी है और सर्कल भी है, तो ये चारों सिंबल तो हैं जिनको हम इसमें फिल नहीं कर सकते क्योंकि ये रो से क्लैश कर जाएंगे और ये कॉलम से क्लैश कर जाएंगे। तो हमारे पास केवल एक ऑप्शन मिलता है, केवल एक ऑप्शन हमारे पास बचता है कि हम इसमें क्या फिल कर सकते हैं? ट्राइंगल। केवल एक शेप बचा हमारे पास, वो क्या था? ट्राइंगल। तो हम इसमें क्या फिल कर सकते हैं? केवल ट्राइंगल के अलावा इसमें हम कुछ भी और फिल नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज वो क्लैश हो जाएगा। तो ये जो ये वाला सेल है इसमें हमारे पास क्या आ गया? इस वाले सेल में ट्राइंगल, ठीक है। ये वाले सेल में क्या आ गया हमारा आंसर? ट्राइंगल। तो अब जब हमारे पास ये रो कुछ ऐसी है कि क्वेश्चन मार्क है हमारे पास, ठीक है, सर्कल है, ये ब्लैंक है, देन हमारे पास ट्राइंगल है एंड देन स्क्वायर है, ठीक है। तो अब जब हमारे पास ऑलरेडी यहां पर ट्राइंगल आ चुका है और बाकी के ऑप्शन हम ऑलरेडी कैंसिल कर चुके थे और यहां पर ये ट्राइंगल भी कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा? प्लस। सो यहां पर क्या आ जाएगा? प्लस, क्योंकि बाकी ऑप्शन तो हम पहले ही कैंसिल कर चुके थे और ट्राइंगल हमने फिल कर दिया इसमें, तो क्या बचा हमारे पास? प्लस। तो यही आंसर है, आंसर हमारा क्या होगा? प्लस। सिंपल, देख सकते हो आप आंसर क्या है? प्लस। देन अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये विजुअल रीजनिंग का क्वेश्चन है और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हमारे पास आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं बट वो क्वेश्चंस मैं आपको तब क्रिएट करूंगा जब आप लिखोगे पार्ट 2 नीडेड, और हम इसके ऊपर एक और वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। सो एंटर द यूनिक डिजिट्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। सो यहां पर ये कह रहा है कि हमें ये तीन चीजें फिल करनी है, ब्लैंक मल्टीप्लाई बाय ब्लैंक देन प्लस ब्लैंक इक्वल्स टू 45। ओके, सो क्या फिल कर सकते हैं हम इसमें? तो देखो सबसे पहले बॉड मास का जो आपको रूल है, सो उसके हिसाब से सबसे पहले हमारा जो ऑपरेशन होगा वो होगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के बाद होता है एडिशन। अगर आप एम में देखोगे ना तो एम पहले आ रहा है ए से, तो पहले मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो पहले मल्टीप्लिकेशन की इक्वेशन सॉल्व होगी और प्लस की बाद में होगी, ठीक है। तो हम इसमें कुछ भी पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बाद में फिर प्लस फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है तो मैं काफी सारे ऑप्शन चूज कर सकता हूँ। सपोज अगर मैंने 7 मल्टीप्लाई 5 किया तो कितना हो गया? 35। लेकिन फिर हम प्लस अगर 10 करेंगे तो 10 तो इसके ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम नहीं कर सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अगले ऑप्शन पे जाते हैं, ठीक है। अगर हम 7 मल्टीप्लाई बाय 6 करते हैं तो क्या हो गया? 7 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो गया? 42, ठीक है। और अगर 42 प्लस 3 कर दें हम इसमें तो क्या 45 आ जाएगा? आ जाएगा। बस यही आंसर हो गया। 7 फिल कर दो, 6 फिल कर दो मल्टीप्लाई में और 3 फिल कर दो, तो इसका आप आंसर देख सकते हो 673, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 3 हो जाएगा। सो आप इसको देख सकते हो 42 आएगा एंड प्लस 3 आएगा तो कितना आ गया? 45, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो से आपको ये क्वेश्चंस के पैटर्न समझ में आए होंगे। पार्ट 2 में बहुत जल्दी लेकर आऊंगा, बस कमेंट सेक्शन में एक बार और बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कैपजेमिनी के गेम बेस्ड एप्टीट्यूड असेसमेंट के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि कैपजेमिनी में यहाँ पर गेम बेस्ड एप्टीट्यूड पूछा जाता है। इस वीडियो में हम उसी को समझेंगे और साथ साथ में हम कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। साथ साथ में अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो आपको बस दो काम करने हैं, आप वीडियो को लाइक कर दो
और कमेंट सेक्शन में लिख देना पार्ट 2 नीडेड, और मैं इसका सेकंड पार्ट क्रिएट करूंगा विथ मोर क्वेश्चंस। ठीक है, तो बस आपको इतना लिखना है, पार्ट 2 नीडेड। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, ये गेम बेस्ड जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड इवन हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो कैप जेमिनी के एग्जाम में बेसिकली आपसे गेम बेस्ड एप्टीट्यूड पूछा जाता है। ओके, तो ये एक अलग टाइप का एप्टीट्यूड होता है, और अगर आप इसकी थोड़ी भी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप इसको आसानी से क्लियर कर पाओगे। सो मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाता हूं इसकी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके पैटर्न को समझना। सो यहाँ पर आपको डिडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग के 6 मिनट के ड्यूरेशन के साथ क्वेश्चंस देखने को जनरली मिलते हैं, जिसमें आपको एक मिसिंग सिंबल फाइंड करना पड़ेगा 4x4 या फिर 5x5 ग्रिड में। सो इसके क्वेश्चन आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कि 4x4 या फिर 5x5 के जो आपका ग्रिड होता है उसमें आप कैसे यहाँ पर सिंबल्स को फाइंड कर सकते हो, और इसके और क्वेश्चंस भी मैं आपको जरूर यहाँ पर प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर आते हैं विजुअल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। सो इसका भी क्वेश्चन मैं आज आपको सॉल्व कराने वाला हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि विजुअल रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। देन ग्रिड चैलेंज। सो ये ग्रिड चैलेंज जो है बेसिकली इसमें आपको मल्टीपल ग्रिड्स दिए जाते हैं या आपको ऑपरेशंस दिए जाते हैं जिनको आपको सॉल्व करना होता है, और मैं यहाँ पर आज इसका भी क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। ठीक है, और यहाँ पर 2 ग्रिड्स आइडेंटिकल हैं कि नहीं, उनके कोऑर्डिनेट्स की पोजीशन क्या है, तो उसके बेस पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। मोशन चैलेंज होता है, सो मोशन चैलेंज को भी आज हम सॉल्व करने वाले हैं। देन आता है स्विच चैलेंज। सो स्विच चैलेंज आज की वीडियो में नहीं है, बट पार्ट 2 में आपको इसके क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है ये हमारा सेकंड, ये है हमारा थर्ड से। जो पहला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं वो हमारे थर्ड सेक्शन से है, दैट इज ग्रिड चैलेंज। ठीक है, ग्रिड चैलेंज। अब ध्यान रखना इसको, कैसे सॉल्व करते हैं इसको जरा मैं आपको एक बार दिखाता हूं। सो बेसिकली आप इसको ग्रिड चैलेंज या फिर इंडक्टिव लॉजिकल या फिर विजुअल रीजनिंग का पार्ट भी बोल सकते हो, इन दोनों में से किसी का क्वेश्चन है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये आपको दो शेप्स दिए हुए हैं। आप पहला शेप देख पा रहे हो, पहले में सर्कल है, फिर प्लस है, फिर डायमंड है, एंड उसके बाद ट्राइंगल है। अब ये कह रहा है इन शेप्स के ऊपर हमने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया है 2413, मतलब जो सेकंड वाला शेप है वो फर्स्ट पे आ जाएगा, फोर्थ वाला शेप सेकंड पे आ जाएगा, थर्ड पोजीशन पे फर्स्ट वाला शेप आ जाएगा, और फोर्थ पोजीशन पे थर्ड वाला शेप आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ऐसा क्या चीज इनपुट करें जिससे बाद में हमें जो आउटपुट मिले वो ये मिले, जो आप नीचे देख पा रहे हो। ओके, सो देखो सबसे पहले आप इसको समझो, ये है सर्कल, देन है प्लस, देन है डायमंड, एंड देन है ट्राइंगल। ओके, सो अब हम बोल रहे हैं कि पहली पोजीशन में हमने 2 को कर दिया, तो पहली पोजीशन पे अगर 2 को कर दिया तो पहली पोजीशन पे क्या आ गया, प्लस। ठीक है, उसके बाद सेकंड पोजीशन पे हमने 4 को कर दिया, तो 4 पे क्या आ गया, ट्राइंगल। उसके बाद हमने थर्ड पोजीशन पे 1 को कर दिया, तो 1 पर, तो थर्ड पोजीशन पे क्या आ गया, सर्कल, क्योंकि ये 1 पे था। फिर फोर्थ पोजीशन पे थर्ड को कर दिया, तो इस पर क्या आ गया, डायमंड। सो हमारे पास आ गया प्लस, ट्राइंगल, सर्कल एंड डायमंड। और हमें आउटपुट में क्या चाहिए, आउटपुट में चाहिए ट्राइंगल, सर्कल, डायमंड और प्लस। तो देखो ट्राइंगल हमें चाहिए आउटपुट में, और ट्राइंगल अभी इनपुट में हमारे पास कौन सी पोजीशन पे है, 2 पर। तो सबसे पहले क्या आ गया हमारे पास आंसर में, 2। उसके बाद हमें चाहिए सर्कल आउटपुट में, सर्कल किस पोजीशन पे है, थर्ड पर, तो हमारे पास क्या आ गया, 3। फिर हमें चाहिए डायमंड, डायमंड कौन सी पोजीशन पे है, फोर्थ पोजीशन पे, तो यहां पर हम लिखेंगे 4। फिर प्लस है, सो प्लस कौन सी पोजीशन पे है, प्लस है पहली पोजीशन पे, तो हम यहां लिखेंगे क्या, 1। सो अगर हम 2 3 4 1 यहां पर इंप्लीमेंट कर दें तो हमारा जो आउटपुट है वो क्या आएगा, जो हमें बताया गया है, ट्राइंगल, सर्कल, डायमंड एंड प्लस। तो आंसर क्या होगा हमारा इसमें, 2 3 4 1, 2 3 4 1, ये हमारा आंसर होगा। और आई होप आप भी मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाओगे, और आप आंसर बाद में देखोगे जब मैं सॉल्व कराऊंगा, पहले आप लोग कोशिश करोगे कि आप इसको सॉल्व करो। सो इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 2 3 4 1। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन के साथ क्लियर होगे, कोई भी डाउट नहीं होगा, और ऐसे क्वेश्चंस यहां पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। जैसे मैंने ये एक क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस करा दिया, तो डेफिनेटली इससे आपको काफी एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करते कैसे हैं। देन अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो ये विजुअल रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है,
सो इसमें आपको करना है पिक द ऑड दैट डज नॉट फिट द ग्रुप, ठीक है। तो आपको एक ऐसे बेसिकली ब्लॉक को यहां पर पिक करना है जो इस ग्रुप को फिट नहीं करता, ठीक है। सो आप एक बार क्वेश्चन को देख लो अच्छे से, वो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। पॉज कर लो वीडियो को, आई होप आप लोगों ने कोशिश करी होगी। सो अब मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इन सब में हमें क्या करना पड़ता है, एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ता है, पैटर्न, ओके। सो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, बस एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। तो पैटर्न कैसा है, अगर आप देखोगे तो ये पहला जो है आपका ग्रुप ए, इसमें जो स्क्वायर है वो आपका सबसे ऊपर हमें दिख रहा है। उसके बाद ये स्क्वायर यहां से मूव आउट किया ऐसे, सो ये जो था ये इसने ऐसे इस तरफ रोटेट किया और सेकंड शेप में स्क्वायर इस पोजीशन पर आ गया, ठीक है। थर्ड सी का जो ऑप्शन है, सी में फिर से स्क्वायर ने रोटेट किया और स्क्वायर हमारे पास इस पोजीशन पर आ गया, ठीक है। अब डी में फिर से स्क्वायर ने रोटेट किया और किस पोजीशन पर आ गया स्क्वायर, इस पोजीशन पर, आप देख सकते हो यहां इस पोजीशन पे आ गया। अब ई है, तो ई पर ये स्क्वायर फिर से रोटेट करके कौन सी पोजीशन पे आना चाहिए था, इस पर, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये ऐसे घूम रहा है, तो ये दोबारा से ऊपर आना चाहिए था, बट ये कहां है, नीचे है। आप देख रहे हो नीचे है ये, तो ये उल्टी डायरेक्शन में मूव किया है। तो ई क्या है, ई हमने पिक कर लिया क्योंकि ये ऑड है, बिकॉज तब से स्क्वायर एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बट अब ई में ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये ऑड हो गया। क्योंकि अगर आप एफ देखोगे तो एफ में ये फिर से राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जी में फिर से राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन अगर आप ई देखोगे तो ये उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहा है ई में, तो इसका आंसर क्या है, ई, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं इसमें, ठीक है। तो आंसर इसका क्या है, ई। क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 हमारा आया है फाइंड द मिसिंग। सो आपको इसमें मिसिंग पार्ट ढूंढना है, ठीक है। सो कैसे ढूंढते हैं मिसिंग पार्ट, जरा मैं आपको बताता हूं। सो देखो आपके पास 5 सिंबल हैं और हर रो और हर कॉलम में यूनिक सिंबल होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक सिंबल अगर एक कॉलम में आ गया या रो में आ गया तो वो रिपीट नहीं हो सकता, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है इसमें हमें ये सिंबल फिट करना है। ये 5 ऑप्शन है हमारे पास, प्लस कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, ट्रायंगल है, सर्कल है और डायमंड है, ठीक है, स्टार है, ओके। सो ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व, क्वेश्चन मार्क वाले को कैसे करेंगे सॉल्व। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसमें एक चीज नोटिस करोगे तो यहां पर इस रो में टोटल 3 सिंबल आ सकते हैं, ठीक है, और हमें एक क्वेश्चन मार्क वाला फिल करना है। तो देखो अगर क्वेश्चन मार्क फिल करना है तो ये तो स्क्वायर तो आ ही नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी इस रो में आ चुका है, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर का ऑप्शन है इसको हम हटा देते हैं कि स्क्वायर नहीं आ सकता, क्योंकि जो नहीं आ सकता पहले हम उन्हें हटाएंगे। फिर है ये सर्कल, क्या सर्कल आ सकता है, सर्कल भी नहीं आ सकता क्योंकि सर्कल भी इस रो में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। फिर इस कॉलम में स्टार भी है, तो क्या स्टार आ सकता है, स्टार भी नहीं आ सकता। अब हमारे पास केवल 2 ऑप्शन बचे, या तो प्लस आएगा या ट्राइंगल आएगा, ठीक है। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्लस आएगा या ट्राइंगल आएगा, देखो मैं बताता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास इस वाले कॉलम की या इस कॉलम की वैल्यू आ गई तो हम पता कर सकते हैं कि इसमें ट्राइंगल आएगा या प्लस आएगा। तो देखो इस कॉलम में तो अगर आप देखोगे तो पांचों, यहां पर जो आप देखोगे पांचों सेल्स खाली हैं, बट ये जो ये वाला कॉलम है बेसिकली इसमें 2 सेल्स भरी हुई हैं, तो हम इसको इजीली फिल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो इसमें स्टार भी है और प्लस भी है, ठीक है, तो हम स्टार और प्लस नहीं फिल कर सकते, ठीक है। इस वाली सेल की बात कर रहा हूं मैं, इस वाली सेल की बात, ठीक है, इस वाली ध्यान से सुनना। स्टार भी है प्लस भी है, तो स्टार और प्लस को हम फिल नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे पास डब्बा भी है और सर्कल भी है, तो ये चारों सिंबल तो हैं जिनको हम इसमें फिल नहीं कर सकते क्योंकि ये रो से क्लैश कर जाएंगे और ये कॉलम से क्लैश कर जाएंगे। तो हमारे पास केवल एक ऑप्शन मिलता है, केवल एक ऑप्शन हमारे पास बचता है कि हम इसमें क्या फिल कर सकते हैं, ट्राइंगल। केवल एक शेप बचा हमारे पास, वो क्या था, ट्राइंगल। तो हम इसमें क्या फिल कर सकते हैं, केवल ट्राइंगल के अलावा इसमें हम कुछ भी और फिल नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज वो क्लैश हो जाएगा। तो ये जो ये वाला सेल है इसमें हमारे पास क्या आ गया, इस वाले सेल में ट्राइंगल, ठीक है, ये वाले सेल में क्या आ गया हमारा आंसर, ट्राइंगल। तो अब जब हमारे पास ये रो कुछ ऐसी है कि क्वेश्चन मार्क है हमारे पास, ठीक है, सर्कल है, ये ब्लैंक है, देन हमारे पास ट्राइंगल है एंड देन स्क्वायर है, ठीक है। तो अब जब हमारे पास ऑलरेडी यहां पर ट्राइंगल आ चुका है और बाकी के ऑप्शन हम ऑलरेडी कैंसिल कर चुके थे और यहां पर ये ट्राइंगल भी कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा, प्लस। सो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस।
क्योंकि बाकी ऑप्शन तो हम पहले ही कैंसिल कर चुके थे और ट्राइंगल हमने फिल कर दिया इसमें, तो क्या बचा हमारे पास प्लस, तो यही आंसर है। आंसर हमारा क्या होगा, प्लस। सिंपल, देख सकते हो आप आंसर क्या है, प्लस। देन अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये विजुअल रीजनिंग का क्वेश्चन है और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हमारे पास आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट वो क्वेश्चंस मैं आपको तब क्रिएट करूंगा जब आप लिखोगे पार्ट 2 नीडेड, और हम इसके ऊपर एक और वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। सो एंटर द यूनिक डिजिट्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। सो यहां पर ये कह रहा है कि हमें ये तीन चीजें फिल करनी है, ब्लैंक मल्टीप्लाई बाय ब्लैंक देन प्लस ब्लैंक इक्वल्स टू 45। ओके, सो क्या फिल कर सकते हैं हम इसमें, तो देखो सबसे पहले बॉड मास का जो आपको रूल है, सो उसके हिसाब से सबसे पहले हमारा जो ऑपरेशन होगा वो होगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के बाद होता है एडिशन। अगर आप एम में देखोगे ना, तो एम पहले आ रहा है ए से, तो पहले मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो पहले मल्टीप्लिकेशन की इक्वेशन सॉल्व होगी और प्लस की बाद में होगी, ठीक है। तो हम इसमें कुछ भी पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बाद में फिर प्लस फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है तो मैं काफी सारे ऑप्शन चूज कर सकता हूँ। सपोज अगर मैंने 7 × 5 किया तो कितना हो गया 35। लेकिन फिर हम प्लस अगर 10 करेंगे तो 10 तो इसके ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम नहीं कर सकते हैं 7 × 5, ठीक है। अगले ऑप्शन पे जाते हैं, ठीक है। अगर हम 7 × 6 करते हैं तो क्या हो गया, 7 × 6 कितना हो गया 42, ठीक है। और अगर 42 प्लस 3 कर दें हम इसमें तो क्या 45 आ जाएगा, आ जाएगा। बस यही आंसर हो गया। 7 फिल कर दो, 6 फिल कर दो मल्टीप्लाई में, और 3 फिल कर दो, तो इसका आप आंसर देख सकते हो 673, क्योंकि 6 × 7 प्लस 3 हो जाएगा। सो आप इसको देख सकते हो 42 आएगा एंड प्लस 3 आएगा, तो कितना आ गया 45, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो से आपको ये क्वेश्चंस के पैटर्न समझ में आए होंगे। पार्ट 2 में बहुत जल्दी लेकर आऊंगा, बस कमेंट सेक्शन में एक बार और बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।